50 questions each, right? I think atomic में थोड़ी कम है. So by the end of the class, it will be in your groups. And I'll take some questions and let's try and solve them. So here's the first question which I'm doing. Right, ये question number क्या है ये मैं तुम्हें बता देता हूँ. So that you don't have to write this question. Right, so this is question number 4. This is question number 4, right? So the question says, when copper is treated with a certain concentration of nitric acid, nitric oxide and nitrogen dioxide are liberated in equal volumes. Right, so copper is treated with this. So nitrogen monoxide and nitrogen dioxide, they are liberated. है ना? फिर क्या बोला? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई बैलेंस करनी है, इक्वेशन को बैलेंस करना है. We just have to balance the equation. Right, so what do we have? We have is this syncing? I think it should sync. Right, so what do we have? We have Cu plus HNO3. It gives you Cu2 plus NO plus NO2. Why have I removed this nitrate ion? इसको मैंने क्यों नहीं लिया? क्यों लिया जी? ये बात समझ आ रही है? Because this already is in +5 state. This is in +5 state. And this also is in +5 state. Right? So this system will make me go mad. Better to get off this. So मैं दोनों से logged in हूँ. I'm trying my level best to do things in a way कि ऐसा ना हो कि I'm being partial towards them. Let me just write on this. So let's talk about this. I'll just share the screen. इससे share कर देते हैं screen को. ठीक है जी. So I have to share the screen from this Zoom session. Controls कैसे दिखेंगे? ये controls. अच्छा. So I'll share the screen. ठीक है जी. So we have this Cu plus HNO3 gives you, I think I need to reduce the font of this now. So Cu plus HNO3 gives you, right again, Cu plus HNO3 gives you
Cu2 plus NO plus NO2. ठीक है जी, ये कहानी चल रही है। तो कॉपर तो +2 स्टेट में जा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है। यू आई होप इट इज क्लियर। नाइट्रोजन प्लस साइड से कहां जा रहा है? इट इज गोइंग इन +2 और इट इज गोइंग इन +4। तो इलेक्ट्रॉन खा रहा है। इज इट क्लियर? इलेक्ट्रॉन खा रहा है। और अब क्या बोला हुआ है यहाँ पर, साथ में ये बोला हुआ है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड एंड डाइऑक्साइड आर लिबरेटेड इन इक्वल वॉल्यूम्स। इक्वल वॉल्यूम का मतलब है इन दोनों के मोल्स क्या होना चाहिए? मोल्स शुड बी सेम। तो यू शुड जस्ट राइट द इक्वेशन। क्वेश्चन ना लिखो चलेगा। दिस क्वेश्चन नंबर 4, राइट? यू शुड जस्ट राइट द इक्वेशन। इसके मोल्स इक्वल होने चाहिए। बात समझ आ रही है? राइट। नाउ देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ बैलेंसिंग दिस। यू कैन डू इट इन मल्टीपल वेज। कि मोल्स बराबर होने चाहिए। तो मैंने तो ऐसे कर लिया इसको कि Cu तो Cu2 प्लस में जा रहा है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है। और मैंने 2 HNO3 पार्टिकल्स लिख लिए। एक HNO3 हो गया, जो मैंने मान लिया किसमें जा रहा है जी? NO में जा रहा है। और एक मैंने मान लिया जी, एक और HNO3 है, जो मैंने मान लिया NO2 में जा रहा है। So this nitrogen +5 is going in +2. So it is extracting 3 electrons. And this nitrogen +5 is going in what? +4. So it is taking only 1 electron. Is it clear? तो capacity electron निकालने की कितनी है? How many electrons can be given out? 4. No, only 2 are given out by 1 copper. Capacity to accept is of 4. But capacity to give out is of 2 only. Right? तो मैं ये 2 ले लूंगा तो मुझे लगता है काम हो जाएगा कि 4 लीटर निकालने की कैपेसिटी है, 4 लीटर खाने की कैपेसिटी खत्म कहानी। Right? I've taken care of the electrons. Is it clear? अब 2 कॉपर, I'll balance those atoms which are changing their states. ये नाइट्रोजन 1 है तो यहाँ पर एक नाइट्रोजन 1 होना चाहिए, यहाँ पर एक नाइट्रोजन 1 है, यहाँ पर 1 होना चाहिए। We have taken care of those atoms which are changing their states. बस बाकी सब बकवास कहानी है। Rest all are useless. Right? Rest all is बकवास, not required. अब चेक कर लो जी, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने? 2 हाइड्रोजन है +1 वाले। हाइड्रोजन बाद में देखते हैं, हाइड्रोजन डलाना समय पहले ऑक्सीजन देख लो। 6 ऑक्सीजन है -2 वाले। यहाँ पे 3 ऑक्सीजन तो आ गए -2 वाले ऑलरेडी। तो 3 और ऑक्सीजन डालने -2 वाले, तो 3 पानी गिर दो। 6 हाइड्रोजन डाल दिए +1 वाले साथ में एक्स्ट्रा। यहाँ पे ऑलरेडी क्या है? 4 हाइड्रोजन है +1 वाले। तो यहाँ पे 4 कह रहे 2 हाइड्रोजन +1 वाले, तो 4 हाइड्रोजन और डाल दो +1 वाले। दिस शुड बी अ बैलेंस्ड इक्वेशन if feelings are strong. Is it clear? चेक करो लेफ्ट साइड पे। लेफ्ट साइड व्हाट इज द चार्ज? It is +4. What is the charge here? It is again +4, 2 into 2. ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है। Is it clear? So what is the balanced equation? The balanced equation is 2Cu plus 2HNO3, right, plus 4H plus gives you what? What does it give you? 2Cu2 plus NO plus NO2 plus 3H2. Is it clear? Now this equation is what? It's an ionic equation. We're revising the theory. Why is it ionic equation? Because it involves what? It involves? What do you think it involves? Ions. Species electron. It involves ions. Logic clear है? Is it clear everyone? Confusion तो नहीं है इसमें? Right? आगे चलें। अब इसको मॉलिक्यूलर बनाना है तो क्या करोगे? यहाँ पर ऐड कर दो क्या? प्लस NO3 माइनस ऐड कर दो काउंटर आयन। इट इज बिहेविंग एज अ काउंटर आयन। तो कितना है जी? 4H प्लस 4NO3 माइनस ऐड कर दो, 4NO3 माइनस यहाँ ऐड कर दो। Reconvert this into molecular equation. प्लस क्या हो गया? 4HNO3 sorry gives you 2CuNO3 whole twice copper nitrate
तो ये बिल्कुल सिंपल बैलेंसिंग की कहानी चल रही है। तो आगे क्वेश्चन, व्हाट इज द इक्वेशन? 2Cu plus 6 HNO3 gives you 2CuNO3 whole twice plus NO plus NO2 plus 3H2. Is it clear? कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? अभी डन? क्लियर है ये बात सबको? राइट, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स और वाई पूछे हैं, तो एक्स का क्वेश्चन क्या है? 2 और उसका क्वेश्चन 6, खत्म बात। बढ़िया क्वेश्चन है। रेडॉक्स से क्वेश्चन ना हो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। रेडॉक्स इज एन इजी टॉपिक, राइट? लेट्स टॉक अबाउट अदर क्वेश्चन, राइट? हाँ जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, this is another simple question. So this question number 9, so I already have it listed here. AGPR on a photographic film. Question number 9. You can write question number 9. You don't need to write the question. जो क्वेश्चन लिखना होगा मैं बता दूंगा। एक आध क्वेश्चन फालतू में करना है शीट में। You will be given the sheet. So AGPR on a photographic film developed with alkaline hydroquinone according to following reaction. तो फोटोग्राफिक फिल्म में क्या होता है? Ag plus goes to Ag. ये कहानी चल रही होती है फोटोग्राफिक फिल्म में। तो Ag plus देख लो, Ag में जा रहा है, दिख ही रहा हो तो, और हाइड्रोक्विनोन से कर लिया कहानी। ये वाली बात चल रही है। तो मतलब व्हाट इज द करेक्ट स्टेटमेंट? हम यहाँ चेक कर लेते हैं पहले। Ag+1 कहां से जा रहा है? Ag 0 में जा रहा है, राइट? सो यू कैन राइट द इक्वेशन, जस्ट बिकॉज़ वरना लिखोगे नहीं कुछ तो वो फीलिंग नहीं आएगी, कुछ तो लिख लो। सो लेट्स राइट द इक्वेशन। दैट्स 2AgBr प्लस 2OH माइनस प्लस 2Ag solid, 2H2O liquid, 2Br minus aqueous, ये क्लियर है बात? इज इट क्लियर? राइट, इक्वेशन लिखी हमने। अभी बैलेंस्ड है कि नहीं है देख लेते हैं। बैलेंस तो मुझे लगी रही है। 2H यहाँ पे कम है ना जी? राइट साइड में 2H कम है, तो वो 2H यहाँ लग गए H2 बनाने के लिए। आई थिंक इट इज ऑलरेडी बैलेंस्ड, है ना? तो Ag+1 कहाँ जा रहा है? Ag 0 में, तो ये इलेक्ट्रॉन खा रहा है। इलेक्ट्रॉन निकालने वाला कौन है? Br माइनस। Br तो यहाँ भी -1 और यहाँ भी Br क्या है? -1। O चेक कर लो, हर जगह O-2 है, राइट? Hb+1 लग रहा है, यहाँ देख लेते हैं। यहाँ यानी कार्बन से हो रहा हो कुछ। ये वाला O भी -2 है, बात समझ आ रही है? ये वाला O जो है इट इज -2, तो ये दोनों O भी -2 ही है, कोई चेंज नहीं है। लेट्स टॉक अबाउट कार्बन। इसमें कुछ कार्बन से दिक्कत हो रही होगी, कार्बन की बात करते हैं। ये वाला कार्बन क्या है? ये वाले कार्बन के साथ एक H लगा हुआ है, बाकी तो ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, तो इस पे चार्ज -1 होगा बस, और सिर्फ +1 होगा। ये बात समझ आ रही है? इस कार्बन पे भी चार्ज क्या होगा? -1। इसमें भी चार्ज क्या है? -1। इसमें भी चार्ज है -1। इसकी बात करो, इस वाले कार्बन की, इस वाले कार्बन की बात करें तो इस वाले कार्बन के साथ तो 3 कार्बन लगे हुए हैं और एक O -2 है, राइट? -2 भी कैसे है कि एक ने इससे खींचा, एक O ने इससे खींचा होगा, एक O ने इससे खींचा होगा, तो इससे एक खींच रहा है, इसमें चार्ज क्या है? +1। इस कार्बन पे भी चार्ज क्या है? +1। ये बात समझ आ रही है कि 4 कार्बन -1 के हैं और एक कार्बन, 2 कार्बन +1 के हैं। लेट्स टॉक अबाउट दिस। इसकी बात करें, ये अगेन 3 कार्बन से कनेक्टेड है। 3 बॉन्ड मान रहा हूं कार्बन से, 2 कार्बन से कनेक्टेड है, पर एक डबल बॉन्ड है और एक सिंगल बॉन्ड है।
तो वो कार्बन तो कुछ नहीं खींचेंगे, साथ में एक क्या लगा हुआ है H, H की वजह से -1 होगा, तो ये H से खींच रहा होगा, ये चारों H से इलेक्ट्रॉन खींच रहे होंगे। और अब इस वाले O को देख लो, राइट, व्हिच कलर हैव आई चोजन हियर, ये मैं ग्रीन ले लेता हूं। ये वाला जो कार्बन है ये कौन सी स्टेट में जा रहा है, इससे 2 इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, तो इसमें स्टेट क्या है +2, इससे स्टेट क्या है +2, ये बात की फीलिंग आ रही है। यानी 2 कार्बन स्टैंडर्ड्स होते हैं, तो यहाँ पे 2 कार्बन हैं जो +1 से यहाँ पर 2 कार्बन में जा रहे हैं, जो कि कौन सी स्टेट वाले हैं +2, 2 कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, इसका मतलब ये फीलिंग आ रही है, आर यू एबल टू फील दिस, राइट। एक मिनट रुको, हाँ हो गया था 400 ही है वो, हाँ 4 ppm ही है, हाँ नहीं 4 नहीं टोटल, उसका आंसर तो है 6 ppm। गलत दे रखा है ना इस वाले को, नहीं तो आंसर तो बी डी दिया था ना, ये वाला था ही उसका आंसर। हाँ आंसर क्या है, बी और डी सही है, आंसर सही है, आंसर सही है उसमें। चलो मैं इसको देख लेता हूँ अभी, है ना, क्वेश्चन देता हूँ उनको करने के लिए, फिर मैं देखता हूँ। आप ये दोनों देख लिए ना आपने, आंसर्स लिख दो, कहाँ पर है आंसर्स का है, दोनों का है ना, आंसर्स का है इसके, ये 94.3। एक बार आंसर्स लिख दो, सॉल्यूशंस है इसके। चेक कर लिया ना आपने, हाँ है ना, मुझे लग रहा था क्वेश्चन गलत है एक्चुअली, चलो कोई नहीं, ठीक है, इसका बी और डी है। राइट, ये क्लियर है सबको, इज दिस क्लियर, राइट। तो मेरा आइडिया है ना, क्वेश्चन एग्जांपल डिस्कस करना एक बारी, लेट्स टॉक अबाउट दिस AgBr। तो Ag+1 जो है वो कहाँ जा रहा है, 0 में जा रहा है, और यहाँ पे कार्बन +1 +2 में जा रहा है, तो कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, इंप्लाइज करने से आ रहे, एंड दिस गेट्स रिड्यूस्ड, implies this must be oxidizing others, खुद इलेक्ट्रॉन खा रहा है, रिड्यूस कर रहा है, तो दूसरों में इलेक्ट्रॉन, दूसरे से इलेक्ट्रॉन पुल आउट कर रहा है, दूसरों को ऑक्सीडाइज कर रहा है, खत्म। तो इट्स एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन, नो, झूठ बोल रहा है, इट्स अ डिस्प्लेसमेंट, नो इट इज नॉट डिस्प्लेसमेंट। Ag plus acts as oxidizing agent, yes, खुद रिड्यूस हो रहा है, इट acts as oxidizing agent, this acts as reducing agent, no, खत्म। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बट आइडिया वाज टू रिवाइज some situation, some things, right? Let's talk about another question. ये क्वेश्चन आ गया जी, this question, next question again, it is actually a question of qualitative, और इसमें मोर सॉल्ट्स पे आ गया, मोर सॉल्ट मैंने लिखा नहीं तो अच्छा यहाँ देख लेते हैं, इट्स बेस्ड ऑन मोर सॉल्ट, राइट। सो मोर सॉल्ट इज नथिंग बट इट इज FeSO4 ferrous sulfate plus ammonium sulfate plus 6 molecules of water, याद बात रहेगा नहीं है, इट इज ferrous sulfate plus ammonium sulfate dot 6 molecules of water. So this is question number 6, again it is in the sheet, you don't have to write the question, right? So this is more salt, basically Fe2 plus है, अमोनियम बाहर में जाए, Fe2 plus है, basically this is nothing but Fe2 plus, you have Fe2 plus in the system, that's what you have to think. Is it clear? Right, तो क्वेश्चन देख लेते हैं, 4 मोल का मिक्सचर है, करो इसको एक बारी, कर लो एक बारी, अटेम्प्ट करो, अटेम्प्ट नहीं करोगे ना मजा नहीं आता, just अटेम्प्ट दिस। So it is 3:29, I'll give you a minute or so, 2 minutes ले लो, चलो 2 मिनट तो बहुत ज्यादा है, पर चलो कोई नहीं। घटिया क्वेश्चन है एक्चुअली, 1 मिनट का क्वेश्चन है।
तो अब कर लेते हैं जी, रिएक्शन इन दोनों का किससे हो रहा है? K1O4 से रिएक्शन हो रहा है, राइट? K1O4 में Mn कहां से कहां जाता है? कहां से कहां पे जाता है? मीडियम एसिडिक होगा और उसने इधर का दे भी रखा है एसिडिक मीडियम, तो वेयर डज इट गो? फ्रॉम +7 to +2. +2. तो ये रिड्यूस हो रहा है, इन टर्म्स उसको ऑक्सीडाइज करेगा। ऑक्सीडाइज किसको करेगा देख लेते हैं। मोर सॉल्ट में क्या है? Fe, मोर सॉल्ट की बात करें तो वी हैव FeSO4, तो ऑक्सीडाइज किसको करेगा? Mn+7 से अगर +2 जा रहा है तो अपनी स्टेट रिड्यूस कर रहा है, तो किसने किसी स्टेट को ऑक्सीडाइज करेगा? ये तो दिख रहा है कि +2 स्टेट वाला +3 में जा सकता है, दिस +2 कैन गो इन +3। सल्फर +6 ये कहीं जा नहीं सकता, ऑक्सीजन -2 वाला ऑक्सीडाइज हो सकता है, पर इस ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइज करना होता तो इसी को ना कर देता वो, Mn अपने आप इसी को कर देता, तो ये ऑक्सीजन तो पक्के से -2 वाली रहेगी, it remains -2, यहाँ 4 आता है, यहाँ पर 8s+ आता है, and then we say 5 electrons and that's how it gets balanced। ये बात समझ आ रही है? तो ऑक्सीजन तो ऑक्सीडाइज हो नहीं रहा, तो बस Fe ऑक्सीडाइज होगा। और क्या है मोर सॉल्ट में? अमोनियम डॉट NH4 whole twice, so they are all counter ions unless and until told you just think in terms of Fe2+, तो बस Fe2+ ऑक्सीडाइज हो रहा है, और साथ में क्या है? Fe2SO4 whole thrice। So you already have ferric, will ferric be oxidized further? तो ऑक्सीडाइज क्या हो रहा है? सिर्फ ऑक्सीडाइज क्या हो रहा है? Fe2+. तो बस 4 मोल का मिक्सचर है, वही स्टैंडर्ड कहानी। 4 मोल का मिक्सचर क्या मान लो? एक्स मोल्स किसे मान लो? मोर सॉल्ट, इसके मान लो एक्स मोल्स हैं और इसके वाई मोल्स हैं, या 4 - x होंगे, राइट? यू कैन सिंपली से 4 - x मोल्स होंगे, ठीक है? तो हमें पता है इसका इनफैक्टर क्या होगा। पूरी 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 ब्रिक से इलेक्ट्रॉन कितने निकलते दिखाई देंगे? इस पूरी ब्रिक से 1 इलेक्ट्रॉन निकलता दिखाई देगा, ये इस बात की फीलिंग आ रही है? व्हाट इज द इनफैक्टर ऑफ दिस? इसको A मान लो, A मोल्स, दिस इज 4 - A मोल्स, इसका इनफैक्टर 1 है, इस बात की फीलिंग आ रही है? तो कहने से मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ मोर सॉल्ट इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ व्हाट? K-4 ही करना था बस, इसके x मिलीमोल्स मान लिए हमने, है ना? A मिलीमोल्स, तो A × 1 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू दे रखी है कितने? 400 × 0.5 मोलर, तो 0.5 मोलर इंटू n फैक्टर करोगे इंटू 400, दैट्स व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू। इज इट क्लियर? आंसर आ जाएगा, ये घटिया क्वेश्चन है। 5 × 5 = 25, 100 × 100 × 10⁻⁻⁻1, तो 1000 मिली इक्विवेलेंट्स आ गए ना, 1000 मिलीमोल्स आ गए ना। ए की वैल्यू निकालिए, A = 1000 मिली इक्विवेलेंट्स बोल सकते हैं, पर इनफैक्टर इज 1, तो A = 1000 मिलीमोल्स, एनालाइज A = 1 मोल, ये आ गया। तो मोल्स ऑफ मोर सॉल्ट आ गए, एंड मोल ऑफ Fe2SO4 होल थ्राइस आ गया, वो कितना है? 3 हो गया। और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? परसेंटेज मोल ऑफ मोर सॉल्ट, परसेंटेज आ गई, 25% आ गई। वन बाय 1 + 3 × 100, कैलकुलेटर लेकर आए, आंसर 25%, फिर हम फुल लेना समाए। बढ़िया क्वेश्चन है ये, राइट? बस मोर सॉल्ट देके तंग कर रहे हैं, तो इस बार क्वालिटेटिव क्वेश्चन हो गया, यू कैन रिमेंबर मोर सॉल्ट। और ये देखिए, ये नहीं जी कंफ्यूज हो रहे हैं कि जी ऐसे तो और पता नहीं कौन कौन से सॉल्ट होंगे, कुछ और आ गया तो आगे, तो बस ऐसे खड़े खड़े देखते रहेंगे, और क्या होगा? सारी मनुष्य कहानी तुम्हारे साथ ही हो रही है, तुम्हारे लिए आएगा, सबके लिए आएगा। ऐसे रैंडम 36 सॉल्ट होंगे, सबको याद करने बैठ जाओ जी, भाड़ में गई फिजिक्स और मैथ्स, यही जिंदगी है ना? Let's talk about this question. Simple questions. Right? Question number 13. So this is question number 13 of the module.
मॉड्यूल कह रहा हूँ of the total sheet which will be given to you. Molecular masses of NH3 and N2 are X1 and X2 in the reaction. N2 plus 3H2 gives you 2 NH3. Just सोच लो, 1 minute दे रहा हूँ. I'm just giving you 1 minute. Get the answer. There's 336. I'll start at 337. I'm giving you a minute. आंसर आ गया? जैसे आज बता देना. हाँ, मैं एक और क्वेश्चन डाल रहा हूँ. आई होप यू हैव द लिंक ऑफ द ऑनलाइन व्हाइट बोर्ड. लिंक है ना सबके पास? स्टैंडर्ड लिंक. ये कर लो, नेक्स्ट कर लेना फिर. तो करें? हाँ, तो मेरे को तो याद ही नहीं था. मैं तो नॉर्मल लीमा की तरह सॉल्व करता हूँ. मुझे याद ही नहीं क्या कहानी है. क्वेश्चन क्या बता दिया? क्वेश्चन बता दिया जी कि मॉलिक्यूलर मास दे दी तुम्हें इन दोनों के, और इक्विवेलेंट वेट्स दे दिए, इक्विवेलेंट मास भी दे दिए, y1 y2. किसके दे दिए? x1 किसका? इसका x1 है. m naught of NH3 is given as x1 and m naught of H2 is given as x2, and equivalent weight of H2 is given as y2, and equivalent weight of NH3 is given as y1. That is given to you. Is it clear? ठीक है जी, आगे चलें. लेट्स मूव फॉरवर्ड. अब इसकी बात करते हैं जी. मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ NH3 and N2. अब NH3 की बात हो रही है और एक N2 की बात हो रही है. अच्छा, N2, H2 छोड़ दिया हुआ है, N2 दिया हुआ है. क्या कर रहा हूँ? चुप बैठे हुए लोग जी, छोड़ो ना, खुद ही निकाल लेंगे कुछ ना कुछ. क्या जरूरत है मुंह खोलने की? मुंह खोलेंगे डांट और पड़ जाएगी, है ना जी. दे रखा है. तो ये आई थिंक अब तुम्हें चेक करना है. कुछ भी ले लो, या तो यू कैन थिंक इन टर्म्स ऑफ मोल्स और यू कैन थिंक इन टर्म्स ऑफ मिली मोल्स, या सीधा फॉर्मूला लगा लो कि इसका एन फैक्टर क्या है. नाइट्रोजन कहां से कहां जा रहा है? 0 से कहां जा रहा है? -3. तो इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, खा रहा है? बता दो. व्हाई डोंट यू अनम्यूट योरसेल्फ? क्या कर रहा है? खा रहा है. कितने खा रहा है? 3. तो ऐसे कितने नाइट्रोजन है? 2 हैं. तो ये पूरी ब्रिक कितने खा रही होगी? 6. इसके टुकड़े कितने करेंगे? 6 टुकड़े, ताकि हर टुकड़ा एक खाए. एक एक की कहानी करनी है. टुकड़े का फंडा ही है कि एक खाओ या एक निकालो. इसकी बात करो जी, इसकी बात करो. ये कहां जा रहा है? 0 से +1. खा रहा है, निकाल रहा है? निकाल रहा है. कितने? 1 2 एक निकाल रहा है. पर ऐसे हाइड्रोजन कितने 0 वाले? 2. पूरी ब्रिक कितने निकाल रही होगी? 2 इलेक्ट्रॉन. पूरे कितने करोगे? 2. लॉजिक क्लियर है? ये क्लियर? कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? इसकी बात कर लो. ये -3 से कहां जा रहा है? 0. इलेक्ट्रॉन खा रहा है, निकाल रहा है? निकाल रहा है. निकाल रहा है. कितने निकाल रहा है जी? 3 निकाल रहा है. इसे क्लियर? या इसे सोच लो, इसमें कंबाइंड सी कहानी, अजीब सी कहानी है. ये इलेक्ट्रॉन खा रहा है, निकाल रहा है? खा रहा है. 0 जा रहा है ना. कितने खा रहा है? ये भी 3 खा रहा है. तो ये 3 ही निकाल रहा है और 3 ही खा रहा है. आपस में हवा में उछाला इलेक्ट्रॉन और खुद ही गलप गया. फीलिंग आ रही है? खुद ही उछाले हवा में, है ना. कुछ लोगों की जीभ लटक गई और खुद ही खा गया फिर दोबारा.
अपना सामान खुद ही खा गया, राइट। तो ऐसे केस में ये मानते किसी एक से ले लो, किसका भी एन फैक्टर हम क्या लेते हैं, 3 ही लेते हैं, ये खुद ही क्या है, खुद ही निकाले, छोड़ो 3 ही मान लो, 3 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है। इज इट क्लियर? क्लियर है कहानी सबको? कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? तो आई थिंक वी हैव रिलेटेड equivalent weight is what? Molecular weight by n factor. Equivalent weight is molecular weight by n factor. What do you want to do? You want to do y1 minus y2? So that will be what? x1 by 3 minus what? x2 by 6. 2x1 minus x2 by 6. ये हो गया. Is it clear? All right. आगे बढ़े. Let's talk about another question. ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कभी नहीं आएंगे. ये ऐसे क्वेश्चन दोस्तों को देने के लिए हैं. समझ आए तो बहुत बढ़िया, नहीं समझ आए तो इससे बढ़िया बात नहीं है कि छोड़ो, रिडॉक्स तो 11वीं पढ़ा था, वैसे भी 11वीं का सिलेबस 30% ही आता है, तो ना भी कर तो क्या जाएगा, छोड़, तो क्वेश्चन छोड़. Right, so you might have to write this question, so leave one page, write this question. Right, let's call it as question number extra question है, तो ये कुछ को बोल दो, question number 51 बोल लो. Right, so leave one page to write this question. One page or half page or whatever is do you think is your writing, you should just leave that page. पढ़ो एक बारी, स्ट्रक्चर बनाओ दिमाग में, स्ट्रक्चर बनाना नींद आ जाएगी, पक्की बात है. राइट, so I should see some people sleeping. सो ही रहे जी, वीडियो ऑफ इसलिए तो कर रखी है, सो रखी है. पढ़ो तो एक बारी. 3:42, I'll give you 2 minutes to try and do something with this question. ये ना हिले तो इसे समझाने की कोशिश करनी है. और ये भी ना हिले, तो यहाँ कुछ करते हैं जोर लगा के आयशा. और तीनों ना हिले, इसका मतलब तुम बिल्कुल नॉर्मल हो. ये बता रहा हूँ मैं, ये ऐसे क्वेश्चन हो रहे हैं तो ये गड़बड़ है, इसका मतलब केमिस्ट्री में कुछ ज्यादा स्ट्रांग हो और मैथ्स और फिजिक्स में नंबर कमाने वाले, इसका मतलब. तो फिजिकल केमिस्ट्री कितने 2 कौड़ी की आती है, चेक कर लेना लास्ट 10 इयर्स, एकदम घटिया फिजिकल केमिस्ट्री आती है, ऐसे क्वेश्चन आने वाले. क्रोमियम एग्जिस्ट एज FeCr2O4. बद्दी हो गया हमारा, वो तो गया, इनऑर्गेनिक पढ़ लिया हमने, क्रोमियम है ये, और क्यों तंग कर रहे हो. इट कंटेन्स Fe.95O1. बहुत लोग यही छोड़ के भाग गए. ओहो, सॉलिड. Fe.95O1 देखते ही फीलिंग आ जाना चाहिए. इसको कैसे लेना है, Fe95 और O100, इसमें कुछ Fe3+ होगा, तभी Fe कम चाहिए. कि X मान लिया क्या है, Fe3+, तो 95 माइनस X क्या होगा, Fe+2, राइट. और 100 क्या है, O-2, तो 3x + 95 - x × 2 = 200.
यहां से क्या आया? ओहो, ये दोनों उड़ा देते हैं जरा, ये ऐसे क्वेश्चन होने वाले हैं नहीं, ये फिर भी आसान है। जो हम कर रहे हैं वो तो बिल्कुल अटरली वाहियात क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आएगा तो ये एक क्वेश्चन 100 नंबर का होना चाहिए एग्जाम के अंदर, राइट? तब तुम करेंगी भी। इतना लंबा है, पढ़ते पढ़ते नींद आ गई। अभी तो पहली लाइन खत्म नहीं हुई है, राइट? तो कितना हो गया? 190 माइनस एक्स इज इक्वल टू 200, दैट इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू 10। इज इट क्लियर? क्लियर है कहानी? कंफ्यूजन तो नहीं है? ये तो कंफ्यूजन के लायक हम बचे नहीं है अभी। ऐसे सवाल पूछा मत करो, जवाब चेंज नहीं होने वाला हमारा। Why don't you change yourself? सोच लो जरा इत्मीनान से। तो क्या हो गया जी? यानी अगर 100 है, Fe 0.95 या 95 की बात करो, तो Fe 85 पार्टिकल्स कौन से हैं? +2 वाले, राइट? उसके साथ O पार्टिकल्स आ गए 85 -2 वाले, काम हो गया। फिर Fe के 10 पार्टिकल्स लिए +3 वाले, और O के 15 पार्टिकल लिए -2 वाले, तो ये बराबर हो गए। ओवरऑल ये कहानी आ गई, Fe 85 +2, Fe 10 +3, O 15, सॉरी O 100 -2, दैट इज द फॉर्मूला। तो फॉर्मूला अगर लिखोगे तो ये क्या है? Fe 0.85, Fe 0.1, O 100, ये फॉर्मूला है। ये फील कर पा रहे हो? डिफरेंस 0.85 और 0.1 वाले में क्या है कि ये वाला कौन सा चार्ज वाला है? ये +3 वाला है, और ये कौन सा वाला है? +2 वाला है। और ये कौन से वाला है? -2 वाला। 100 को लिख रहा हूं इसको, सॉरी, दिस इज 1। इज दिस क्लियर? इज दिस कहानी क्लियर? यस भैया। क्लियर है कहानी सबको? और ये हमने सॉलिड रिवाइज कर रहे हैं, यहाँ पर सॉलिड रिवाइज हो रहा है। ये देखते समय आना चाहिए था कि 5 का वर्ड है, कि 100 अगर लैटिस पॉइंट्स हैं तो 100 केटाइंस होने चाहिए, उसमें 5 वर्ड आ गए। वो 5 वर्ड कैसे आए होंगे वो देखना पड़ेगा, है ना? कि शायद क्या कहते हैं, चार्ज बढ़ा रखा होगा कुछ ना कुछ करके। तो एक तुक्का बेसिकली मैंने ऐसे माना कि यानी 5 और हमने 10 उखाड़े होंगे Fe2+, है ना? उसकी जगह Fe3+ डालो, या 15 उखाड़े होंगे Fe2+, उसी जगह Fe3+ डालो, समथिंग लाइक दिस। तो सोचना, ओरली सोचोगे तो ओरली फीलिंग आ जाएगी कि 85 क्यों करा आपने, वाई डिड यू डू 85, कि Fe2+ की जगह Fe3+ डाल रहे होंगे तभी तो वर्ड आएगा। तो कितने Fe2+ निकाले? जी 10 निकाले Fe2+, तो 20 यूनिट का चार्ज निकाला है, उसको Fe3+ सफाइस नहीं कर पाएगा, कुछ 3 का मल्टीपल टाइप होना चाहिए। तो फिर मैंने बेसिकली 15 निकाल लिए Fe2+, 15 Fe2+ निकाल लिए, 15 Fe2+ निकाल लिए, तो 4 से निकाल लिया +30, उसकी जगह 10 डाल दो Fe3+, तो आ गया +30। तो 15 Fe2+ निकाल के 10 Fe3+ डाल दो तो काम हो गया, और आगे 5 के वर्ड। तो मैं तो हिट एंड ट्रायल की फीलिंग से कर दिया था एकदम से, ओहो ये तो 85 Fe2+ है और 10 क्या Fe3+ है, खत्म हो गया काम, राइट? बट देन यू कैन डू इट इन मैथ्स। क्वेश्चन तो पढ़ेगा, रुक जाओ, अभी क्वेश्चन तो खत्म नहीं हुआ। Chromium exists as this, it contains this as impurity, very nice। ये पूछे पक्की बात बताओ, impurity का परसेंटेज क्या है? ऐसी नौटंकी हुई क्वेश्चन में। To obtain pure chromium from Fe2CrO4, the ore is fused with KOH, राम कहानी चल रही है अभी, and oxygen, right? And oxygen is passed through the mixture when K2CrO4, this was yellow if you remember by any chance, right? When K2CrO4 and Fe2CO3 are produced, बता दिया। तो अब क्या बोला जी कि FeCrO4 का रिएक्शन कराया किससे? OH- के साथ और O2 के साथ, तब K2CrO4 and Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड, ये बता दिया जी। फिर क्या बोला जी? आगे चलते हैं।
a quantity of 2 ग्राम ऑफ ओर कितना लिया 2 ग्राम, ये ओर है इम्प्योर, कितना लिया 2 ग्राम, तो 2 ग्राम ऑफ ओर required 280 ml of O2 at 0 degree centigrade 1 atmosphere pressure. तो it required 280 ml of O2, है ना, मनूस वैल्यू है ना, HTP है ये, इसके मोल आ गए 280 बाय 22.4 कर दूंगा तो मिलीमोल्स आ जाएंगे। इसे क्लियर? राइट। अब ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में तो आने नहीं वाले, घर में करेंगे तो कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा। 280 इंटू 10 करना तो 224 हो गया, बचा कितना, कितना बचा 280 में से 224 माइनस करो, देखो मेरी सब्ट्रैक्शन बहुत वीक है, प्लीज बी आर 56 आ रहा है, 22 दूनी 44, 2.5 गुना से तो नहीं जा रहा है, देखना एक बारी, 22 दूनी 44, तो 22 का आधा हो गया 11.4, तो 44.8 और 11.2, क्या बात है, फोड़ दिया हमने, 5 6 2.5 गुना हो गया है, तो ये 12.5 होगी वैल्यू। एग्जाम में ना हो रहा है ये इसके लिए चाहिए इनफाइनाइट टाइम कि जी एक दिन में एक क्वेश्चन करना है और 100 नंबर मिलेंगे, तब करेंगे इत्मीनान से, वरना तो कैलकुलेटर 280 बाय 224 जी 24 22 बाय 4 हमें सपने आ रहे 12.5 है, मनुष्य आदमी ने क्वेश्चन दे रखा है जी, नहीं क्यों दिया हमें क्वेश्चन, राइट, क्वेश्चन तो आप ही लाए हो तो मैंने तो निकलवाए हैं, ये निकालो 10 क्वेश्चन, बोल रही कहानी सॉल्व करते, मैं तो मजे मजे में कर रहा था, चलो तो it is just you know entertainment for me and I'm sure it is not entertainment for you, right? तो 12.5 मिलीमोल आ गए, ये दे दिया, आगे चलते हैं जी। 2 ग्राम और ने करा फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ओर, यानी जितना भी इसमें ओर था, जितना भी ये था 2 ग्राम का पूरा पूरा ये नहीं था, जितना भी था पूरा पूरा ऑक्सीडाइज हो गया। अच्छा जी आगे चलते हैं। फिर K2CrO4 प्रेसिपिटेट इज बेरियम क्रोमेट, राइट, सो क्रोमेट में बेरियम क्रोमेट का प्रेसिपिटेट होता है, व्हाइट होगा प्रेसिपिटेट, नहीं येलो होगा, येलो क्रोमेट का कलर येलो होता है, याद आ रहा है क्वालिटेटिव, तो ये भी येलो होगा और ये भी येलो होगा, के का कोई कलर नहीं है, प्रेसिपिटेट BaCrO4 आफ्टर एडिशन ऑफ बेरियम सॉल्ट, तो कोई बेरियम सॉल्ट डाल दिया, कुछ Ba2+ डाल दिया, और जी ये तो था एक्वस और अभी प्रेसिपिटेट हो रहा है। नाउ वी आर एबल टू सॉल्व दीस क्वेश्चंस ऑफ स्टोइचियोमेट्री विद फीलिंग्स, तो शायद आज से 2 साल पहले फीलिंग कुछ नहीं, ये प्रेसिपिटेट हो रहा है जी, पता नहीं होता होगा जी, मान लेते थे। नाउ वी आर एबल टू फील सच क्वेश्चंस, येलो पीपीटी बन रहा होगा, बता दिया जी। आगे चलते हैं जी टू रिमेनिंग सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन जो है ये एक्वस चल रहा है, तो रिमेनिंग सॉल्यूशन क्या चल रही है जी कहानी, 10 ml of 1 molar K4CN6 pale yellow, याद है पोटेशियम फेरोसाइनाइड pale yellow is added when Fe3+ ion, तो रिमेनिंग सॉल्यूशन में फेरोसाइनाइड डाला है, अब फेरोसाइनाइड का रिएक्शन इससे तो हो नहीं सकता, तो गायब खत्म हो चुका है, फेरोसाइनाइड का रिएक्शन किससे होता है Fe3+ से, फेरी फेरोसाइनाइड प्रशियन ब्लू है, हाँ हाँ when Fe3+ ion reacts with it to form KFe3+, this must be +3 and this +2, ferricyanide, लो दे भी दिया प्रश्न ब्लू, एग्जाम में हाथ जोड़ के बोल रहा है देख लो अंधो, क्या निकल रहा है, Prussian blue precipitate type पर कुछ बन रहा है, Fe3+ reacts to form this, है ना, after called Prussian blue, something like this, तो ये this is giving you Prussian blue, ये रिएक्ट कर रहा है पेल येलो क्रिस्टल से K4FeCN6 to form Prussian blue KFeCN6, ये फीलिंग आ रही है, इत्मीनान से कर रहे हैं चीजों को, जो भी कहानी इसको लिखो, क्योंकि भाई 100 नंबर का क्वेश्चन है, इनफाइनाइट टाइम है, 10 ml of 1 molar, 10 मिलीमोल्स, कैलकुलेट ना कर रहा हूं मैं कि ये भी कैलकुलेट करके दिखाओ, तो 2 दिन चाहिए, इज इट क्लियर? आगे चले,
to determine excess of K4 FeCN6. अच्छा जी, देख रहे मतलब जिंदगी में किसी बाल्टी उड़ेल दी, ये नहीं इसको भी शांति से डाल दे होता है, डाल देता चाहिए ना जी. To determine excess of K4 FeCN6, 6 ml of 0.4 normal Fe2 plus is added. तो 6 ml of 0.4 normal, मतलब ये एक्सेस में पड़ा है. तो एक्सेस K4 FeCN6 को किस में रिएक्ट कराया? पॉइंट ये Fe2 प्लस में रिएक्ट कराया 0.4 नॉर्मल, और कितना वॉल्यूम दे रखा है? 6 ml, राइट. तो ये तो फेरोफेरोसाइनाइड बन रहा होगा. फेरोफेरोसाइनाइड वाज पेल ब्लू, if you remember by any chance, is added when all the K4 FeCN6 is specified as K2 Fe. देखो ये फेरोफेरोसाइनाइड है, फेरोफेरोसाइनाइड. तो रिडॉक्स रिएक्शन नहीं हो रहा कोई भी. It is not a redox reaction, it is ferroferrocyanide. So both of them together, they are forming ferroferrocyanide, just pale blue, K2 FeCN6. Clear है? So how is Fe2 plus behaving? Is it behaving as some redox reagent? Is it behaving as some redox reagent? No, sir. No. So not behaving as some agent. Agent क्या हो गया? OA or RA. It is not behaving. It is behaving as what? Behaving as counter ion. याद आ रहा है? जैसे मैंने कहा था सल्फेट आयन कि व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फेट आयन? क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? बोल नहीं सकते, रिएक्शन पे डिपेंड करेगा. क्यों नहीं बोल सकते जी? कुछ नहीं बताया तो इसका मतलब क्या है? एसिड. इट इज आयन फर्स्ट क्लास. जी फर्स्ट क्लास तो बरसों हो गए, जमाने हो गए जी, क्या बात कर रहे हो? फर्स्ट क्लास तो जी अब कहाँ, 20 साल पहले, 20 साल पहले के बंगले में कहाँ जाएंगे, भूत भटकते हैं वहां पर. फर्स्ट क्लास, इट इज behaving as an iron. If nothing is given, it is not an RA or OA. What is the equivalent weight of phosphate ion? Molecular weight upon 3. What is the equivalent weight of magnesium 2 plus? अब तो upon- आ गया, इंसान का दिमाग शातिर होता है जी. हाँ आ गया बस. हाँ हाँ, हम तो आपको चेक कर रहे थे. अरे ये काउंटर आयन है. यहाँ टुकड़े कैसे करते हैं? जितना चार्ज होते हैं टुकड़े, ताकि हर टुकड़े में एक चार्ज हो. एसिड H3PO4 टुकड़े कितने करते हैं? 3, ताकि हर टुकड़े में एक H प्लस हो. याद आ रहा है? याद आ रहा है? हाँ, yes, you're right. So how many molecules? How many molecules? अरे फूट लो कुछ मुंह से. Why don't you unmute yourself? Please unmute yourself, everyone. नेगरा, प्रांजल, कृष, आकाश, वाइश, ये बढ़िया नाम है ना? दक्ष. ओ दक्ष तुम्हारा तो मतलब मजाक उड़ता होगा बहुत ज्यादा, सोच रहा हूँ मैं. दक्ष तो मुझे लगता है एक विलेनियस कैरेक्टर था, कहीं कोई शिव और पार्वती के उसमें कुछ था ना. दक्ष कौन था? आई थिंक ही वाज द फादर ऑफ सती. दक्ष का कुछ और ही अच्छा मतलब होता होगा, पक्की बात है ना? चतुर शायद. है ना? बट दक्ष वाज अ वेरी ब्रेनी पर्सन. ही वाज एन अल्ट्रा ब्रेनी पर्सन. ही सपोजिटली चैलेंज शिवा. तो उस फीलिंग से रखा होगा. लोगों को पता तो होता नहीं वैसे बेसिक मैथोलॉजी में कौन बिलीव करता है ना? So please unmute yourself. I think one of my nephew's name is also Daksh. What time हुआ? कोरोना काल में मिले नहीं. Anyways, आकाश है. ख्वाहिश ने फिर दोबारा म्यूट कर लिया अपने आप को. क्या चल रहा है? उत्कर्ष, दीपांशु, कृति, प्रियांश, सृष्टि,
Are you mute? Please unmute yourself. इन लोगों ने एक्सिट करना चालू कर दिया जी, छोड़ो, अब तो पीछे पड़ने वाले हैं। Please unmute yourself. प्रभव, शाश्वत, अभिषेक, कनिका, अर्णव, सान्या, मुकुंद, अनुष्का ने कर लिया म्यूट। सोना है तो आराम से सोना, क्या परेशानी है? प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। अभिषेक जी क्या हो गया? माला लेकर कर दिया भैया, कर दिया। वीडियो शुड बी ऑन। ये गलत बात है, माइक की डील हुई थी। दिस इज नॉट डन। ये तो आप उंगली पकड़ के पहुंचा पकड़ रहे हो। दिस इज नॉट डन। ये क्लियर है सबको? काउंटर आयल है तो हाउ मेनी मिलीक्वेंट्स? हाउ मेनी मिलीक्वेंट्स? अरे आंसर गलती तो होगा, फूट लो कुछ मुंह से। 0.4 into 6. हाँ तो बस खत्म। 2.4 ये कैलकुलेटर लेकर आना था। ये अंधे को भी दिख रहा है, नॉर्मलिटी दे रखी है, एमएल रखा है, तो क्या क्या करोगे? ये करोगे और कुछ आता ही नहीं, बाकी सब भूले पड़े। कौन लेना की तरह करते हैं? थ्योरी रिवाइज करने का मन नहीं है, कौन करे रिवाइज थ्योरी? और काम जिंदगी में केमिस्ट्री पढ़ते रहे। व्हाट इज द इनफैक्टर? व्हाट इज द इनफैक्टर ऑफ दिस? 2. तो दो टुकड़े करके 2.4 टुकड़े, तो बड़ी बॉल्स कितनी होगी? बस चप्पल चल रही है घर में, चप्पल जूते से लड़ाई चल रही है ना जी। निकाल लो वो तलवारें, रामलीला में होती थी ना, लड़ते थे, एक के पास गदा, एक के पास तलवार, एक के पास धनुष बाण, लड़ मर लो। So such people can mute themselves, and when they mute themselves, I'll make them unmute again, and then I would like to listen to the infighting happening, and we will all relish, है ना? तो देखा कहानी, घर की कहानी, घर की। तो कैसे तो सीरियल आते हैं ना, अपने घर में बना ले, कभी सौतन कभी सहेली, वो लोग देखते भी हैं, है ना? तो ये क्लियर है? मिलीमोल्स, we have 1.2 मिलीमोल्स। यस राइट, 1.2 मिलीमोल्स थे, इसके कितने थे? 10। तो यानी इसके साथ कितने यूज हुए? यूज हियर, यहां पर कहने से ये यहां पर यूज कितने हुए? यहां पर यूज हुए 8.8। इज इट क्लियर? Yes, sir. टोटल कितने थे? टोटल K4 FeCN6 के थे 10 मिलीमोल, उसमें से 8.8 यहां यूज हुए। इज इट क्लियर? Yes, और sir. 1.2 यहां यूज हो गए ना? Hmm. ये बात समझ आ रही है? क्योंकि 1:1 का रेशो है। Yes, sir. अगर तुम रिएक्शन बैलेंस करना चाहो, रिएक्शन बैलेंस कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट विल बी द रिएक्शन? द रिएक्शन विल बी Fe+2 plus K4 FeCN6 will give you what? K2 FeCN6 plus 2K plus ये तो होगा कि 1 mole of this combines with 1 mole of this. Is it clear? हाँ वही। Right? जल्दी कहानी। तो ये इसके कितने मोल थे? 10। उसमें से इसके मिलीमोल कितने आए? 1.2। 1.2 से 1.2 खाली होगा। प्रिंस की लड़ाई हो रही है। चलो कोई नहीं, आगे चलते हैं जी। हर्ष इज नॉट आउट। यस हर्ष। भैया जो हमने स्टार्टिंग में ऑक्सीडेशन करवाई थी सबसे फर्स्ट रिएक्शन में, इसके अंदर इम्प्योरिटी के अंदर जो Fe2+ है वो भी तो ऑक्सीडाइज होगा। इम्प्योरिटी के अंदर Fe2+ बिल्कुल होगा। मैंने कब कहा नहीं होगा? तो फिर भैया हमने उसको इसके अंदर काउंट किया। ऑलरेडी Fe2+ लिखा हुआ है ना, मैं भी यहाँ तक पहुंचा कहूं। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। यहाँ पर Fe+2 है, कितना था? 0.85। यस सर। ये तो ऑक्सीडाइज होगा। और Fe+3 है 0.1, वो ऑक्सीडाइज ना, और तो ऑलरेडी +3 है। यस सर। राइट, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अभी तो हम यहीं पे इसी को तोड़ तोड़ कर ले, टू सॉल्व क्वेश्चंस इनटू पार्ट्स एंड देन रीग्रुप। दैट्स व्हाट यू हैव टू डू। ओके सर। राइट, इज इट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? एक बार वापस समझा दो, मैं बीच में कट हो गया था। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया है। कहाँ पे कट हुए थे बताइए, दोबारा शुरू जाते हैं हम तो। फिर FeCr4 plus OH- वाले पे कट हुआ।
यहाँ पे कटे हुए थे तो कोई नहीं, अभी दोबारा आ रहे हैं, अभी क्लियर हो जाएगा. So now this is reacting with Ba2 to give a precipitate and this is reacting with K4FeCN6 to give precipitin blue. और हमने सब लगाया 10 मिलीमोल है, तो इससे कोई रिएक्शन दिखे उससे पहले एग्जाम का नहीं, रुक जाओ, हम बाहर चले गए थे चाय पीने, तो K4FeCN6 जार डाल दिया. अब जितना डालो उसके लिए क्या, कितना जार डालो उसके लिए, उसको चेक करने का डाला Fe2+, तो Fe2+ से इसका रिएक्शन करा एक्सेस वाले को और पेल ब्लू बना दिया. कितना Fe2+ चाहिए जी, इतने मिली इक्विवेलेंट्स व्हिच इज 2.4. n फैक्टर इसका क्या है 2. Why? Because it is behaving as 9. How do you know it is behaving as 9? Because neither it is going to और रिड्यूसिंग नहीं है, ना तो ये +3 में जा रहा है ना ये 0 में जा रहा है, ये तो काउंटर आयन की तरह बिहेव कर रहा है. तो काउंटर आयन की तरह बिहेव करता है, इनफैक्टर तो चार्ज के ऊपर होता है, जितना चार्ज उतना इनफैक्टर. तो 2.4 मिली इक्विवेलेंट्स तो 1.2 मिलीमोल्स. फिर हमने देखा इन दोनों का रिएक्शन कैसे हो रहा है, इट इज इन हैपनिंग इन 1:1 रेशियो. तो अगर इसके मिलीमोल्स 1.2 तो इसके मिलीमोल्स कितने होंगे, एक्सेस 1.2, टोटल कितने थे 10, तो यूज कितने हुए यहाँ पर 8.8. इज इट क्लियर? अब चेक कर लो, इसके एक Fe, इसका एक Fe, इसके कितने मोल्स यूज करेगा, एक. चेक कर लो, इसका एक Fe3+, यहाँ पर Fe3+ देख लो कितने मोल फॉर्मूले में, एक ही है, यहाँ फॉर्मूले में कितने, 2. तो अगर यहाँ पे हमारे पास 5 Fe3+, 5 Fe2O3 होंगे तो क्या ये 5 बनेगा? अगर ये 5 Fe2O3 में तो क्या ये 5 बनेगा? नहीं. कितना बनेगा? 2.5. नहीं समझ आ रहा तो ऐसे कर लो, Fe2O3 का रिएक्शन हो रहा है K4FeCN6 के साथ, और रिएक्शन में क्या आ रहा है, KFeFeCN6, पोटेशियम फेरोसाइनाइड. ये तो कहानी है. इज इट क्लियर? और K+, तो यहाँ 3K+ लिख दिया. इज इट बैलेंस? कितने Fe3+ हैं? 2. कितने Fe3+ चाहिए? 2. इज इट क्लियर? कितने फेरोसाइनाइड आ गए? 2. कितने फेरोसाइनाइड चाहिए? 2. कितने K+ आ गए? 8. यूज कर चुके 2, तो कितने डालने हैं? 6K+. क्या बचा और? ओ कितने? 3. तो 3 का डाल दो पानी और 6 का डाल दो. बैलेंस्ड. Is it redox? Yes. Is it redox? Is it a No. redox reaction? नहीं. नहीं भैया. This is No, not sir. a redox reaction. This also is not a redox reaction. अदला बदली हो रही है, डिस्प्लेसमेंट टाइप कहानियां हो रही हैं. Is it clear? So 1 mole of Fe2O3 uses how many moles of K4FeCN6? 2. 2. How many moles did we have here? 8.8. 8.8 millimoles. तो इसके कितने यूज होंगे? 4.4. 8.8 मिलीमोल्स किसके हैं? K4FeCN6 के या 2K4FeCN6 के? K4FeCN6. K4 के. तो 2K4FeCN6 कितने हो गए? 17.6 मल्टीप्लाई बाय 2. क्लियर है? इज इट क्लियर? 2K4FeCN6 कितने हो गए? 8.8 into 2. इज इट क्लियर? इसमें डाउट तो नहीं है कोई? अभी लात मारूंगा पकड़ के. या फिर तो Fe वाले के भी 8.8 तो हो गए. 2K4FeCN6 कुछ है ही नहीं. भाई कैसी बातें कर रहे हो? ये मैंने कहा था कंफ्यूजन होगी, और आज से 2 साल बाद पूछूंगा, 2 साल पुरानी कहानी बता रहा हूं, और लोग हो जाएंगे गायब, और फिर मैं लात मारूंगा और हंसूंगा. अब लात मारने का मौका गायब हो चुका है कि कोरोना आ चुका है, वरना भी सामने होते मेरे और हाँ कर रहे होते, वहीं नाक के नीचे 1 2 3 चांटे, वही मसला होता है उसके बाद. अरे सोच तो लो, अरे सोच तो लो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 2 पार्टिकल इसके. What does it mean if I say A plus 2B gives you something? So what does it mean?
कि डब्बे में एक पार्टिकल इसका है और 2 पार्टिकल इसके हैं तो कुछ बन रहा है। तो अगर बी के 10 पार्टिकल है तो ए के कितने चाहिए होंगे? कितने चाहिए होंगे? 5। तो अगर बी के 10 पार्टिकल्स हैं तो 2b के कितने हैं? 20। हाँ भैया। ये अजीब बात होगी, 2b क्यों बोल रहे? देयर इज नो 2b। ये 5 कैसे आया? ये 2 और 1 के रेशो को इस करके तो आया कि b के अगर 2 पार्टिकल्स होते हैं तो a का 1 आता है। तो b के अगर 10 पार्टिकल होंगे तो a के कितने होंगे? अच्छा 5। उसको मैथमेटिकली लिख दिया हमने ऐसे, पिक्टोरियली। ये फिगर है। तो ये पार्टिकल्स किसके हैं? बी के 2b के? बी के। तो 2b के B कितने के हैं? 20 10 ही होंगे। 2b फिर 20। नो भाई घुसने वाला हूँ घर के अंदर। फिर 4b के कितने हैं? 40। फिर जी 8b के कितने? हैप्पी बर्थडे 80। अरे वो ये 8 करोगे तो यहाँ 4 ना हो जाएगा। पार्टिकल किसके हैं? बी के बी के। तो ये 8.8 पार्टिकल किसके हैं? A4C A4 K4FC ये इसके कितने हैं? 4.4 वो ये 2 और 1 ही तो यूज करके आया है। ये थोड़ी सी 8.8 2 K4 एफिशिएंसी के। तो K4 एफिशिएंसी कितने? 4.4 खत्म। या 8.8 इसके तो 2 K4 एफिशिएंसी कितने? 17.6। बस कुछ ना कुछ पे तो पे लो। ये ऐसी कहानियां मत करने लग जाना। ये बचपन की यादें रिवाइज कर रहे हैं हम। इज इट क्लियर? यस सर। यस भैया। राइट। तो इसके मिलीमोल्स आ गए 4.4। इज इट क्लियर? क्लियर है ये बात सबको? हाँ भैया। कंफ्यूजन तो नहीं है? तो ये क्लियर है कि हमें समझ आ गया इसके मिलीमोल्स कितने हैं। बात समझ आ रही है? अब यहाँ पे हमने एक गलती कर दी है कि ये जो Fe3+ आया है कहां से आया? Fe+2 ऑक्सीडाइज हुआ उससे आया। पर यहाँ पर Fe3+ टेस्ट ट्यूब में और भी तो पड़ा होगा। कौन से वाला? इम्प्योरिटी वाला। जो ये FeO वाली टेस्ट ट्यूब है वही तो टेस्ट ट्यूब की कहानी है ये। तो इस टेस्ट ट्यूब में ये वाला Fe3+ नहीं पड़ा होगा। ये फील कर पा रहे हो? ये तो पड़ा होगा 0.1 वाला जो है ये बात समझ आ रही है? यस सर। ये बात समझ आ रही है? क्या बोल रहे हैं? इज इट क्लियर व्हाट इज हैपनिंग? इज इट क्लियर? लेट मी राइट दिस अगेन। हाँ भैया। Let me write this again. So we had Fe 0.95 O1. Let me say I had X moles of this. And we had Fe2 CrO4 है. Okay. FeCrO4 है. इसको मैं लेता हूं लेट से Y moles. Is it clear? ये किससे रिएक्ट करा रहे हैं हम? ये दोनों मिलकर इन दोनों से क्या मिल रहा होगा? इससे क्या मिल रहा होगा? ऐसे X मोल्स मिल रहे होंगे Fe 0.85 + 2 के। ये बात समझ आ रही है? और X मोल्स मिल रहे होंगे कौन से? Fe+3 जो कि 0.1 है। ये क्लियर है? ये क्लियर है ना? अगर X Yes, sir. मोल्स है तो O के कितने मोल्स है? सीधा X। अगर यहाँ 2 होता तो X के कितने मोल्स है? 2 होता तो कितने मोल्स है X के? 2x 2x। तो 2x. X ना लिखो, ऐसे लिख लो कि हमारे पास 0.85 X मोल्स होंगे किसके? Fe+2 के। Fe+2 के और 0.1 X मोल्स होंगे किसके? Fe3+ के Fe2+। ऐसे लिख लो। ये फीलिंग आ रही है? यस भैया और ये Y मोल्स हैं तो यहां से क्या रहे? Y मोल्स हैं किसके? Fe+2 के मिलीमोल्स में। Talk in terms of millimoles. Y मिलीमोल्स किसके हैं? Fe2+ Fe2+ के दोबारा।
तो यहाँ पे ऐड कर लो ना, तो ये प्लस y कर दूं, ये फीलिंग आ रही है? और y मिलीमोल्स किसके हैं? क्रोमाइड आयंस के। इज इट क्लियर? ये बात समझ आ रही है? ये बात समझ आ रही है, नहीं आ रही है? हाँ Oh yeah. हाँ भैया। ये पूरा तामझाम रिएक्ट करता है O2 के साथ in presence of what? OH minus. And how many millimoles of O2 are there? 12.5 millimoles of O2 are there. Is it clear? O2 कहां जा रहा होगा? पक्के से O2 जहां भी जा रहा होगा वो -2 स्टेट में जा रहा होगा, चाहे वो तुम H2O की फॉर्म में लिखो या एनीथिंग एल्स और एनी ऑक्साइड। और एनी अदर कंपाउंड। ये फीलिंग आ रही है? ये फीलिंग आ रही है? कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? तो ये इलेक्ट्रॉन खारा होगा निकाल रहा होगा? होगा ये इलेक्ट्रॉन खारा होगा निकाल रहा होगा? खड़ा होगा। कितने? एक O दो खा रहे हैं। यस सर। ऐसे कितने O है? जीरो दो वाले है। दो है, तो 4 खा रहा होगा, 4। यानी इसका फैक्टर क्या हो गया? 4। इज इट क्लियर? अरे ये x लिख दिया ना मैंने, अब ये n फैक्टर को n लिख लो, n फैक्टर को n लिख लो, n मोल्स हो जाएगा। तो अब छोड़ो, मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं सीधा। 12.5 × 4 कितना होगा? 12 चौक 48 से 50 हो गया। एंड ऐसे 50 मिली इक्विवेलेंट्स है हमारे पास, और वो इलेक्ट्रॉन खा रहा है, निकाल कौन रहा है? ये CrO4 है, Cr2O4 है, एक बार चेक कर लो। Cr2O4 Cr2O4, FeCrO4 नहीं है, दिस इज FeCr2O4। तो CrO4 2 माइनस नहीं है, ये Cr2O4 2 माइनस है। तो क्रोमियम कौन सी स्टेट में है? -2 × 4 -8, -8 में 2 बचाया, -6, -6 का उल्टा +6, +6 2 पर 1 + 3। तो क्रोमियम कहां जा रहा होगा? +6 में जा रहा होगा। इलेक्ट्रॉन खा रहा है, निकाल रहा है? निकाल रहा है। 3। ऐसे कितने क्रोमियम है +3 वाले? 2 2। ऐसे 2 क्रोमियम में +3 वाले, ये बात समझ आ रही है? तो इलेक्ट्रॉन कितने निकाल रहा है? 6। 6। तो अगर y मिलीमोल्स हैं तो कहना है 6y मिली इक्विवेलेंट्स हैं। और इन मिली इक्विवेलेंट्स का की प्रॉपर्टी क्या? इलेक्ट्रॉन निकालना। इन मिली इक्विवेलेंट्स की प्रॉपर्टी क्या? इलेक्ट्रॉन खाना। फीलिंग से करना है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं जी, इसकी बात करते हैं फर्दर। अब क्या ये इलेक्ट्रॉन निकालेगा +3 वाला? और नहीं ये ना निकाल रहा, ये ना निकाल रहा, क्या ये निकालेगा? हाँ निकालेगा? हाँ जी निकालेगा। Yes, sir. निकाल के कहां जाएगा? +3। इज इट क्लियर? तो ये कितने मिली इक्विवेलेंट्स हो गए? मिलीमोल्स थे। n फैक्टर इसका कहने से 1 है। डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद दिस x एंड दैट x। लेट मी कॉल दिस x0 एंड y0। x0 y0 बोल दो इसको। इसका n फैक्टर 6 है, राइट? इसका n फैक्टर 4 है। लॉजिक क्लियर है? राइट? Yes. तो ये टुकड़े कितने आ गए? n फैक्टर 1 है तो 0.85 प्लस y मिली इक्विवेलेंट्स आ गए। 0.85 x प्लस y मिली इक्विवेलेंट्स। और इनके भी, इनकी प्रॉपर्टी क्या? इलेक्ट्रॉन निकालना। तो इलेक्ट्रॉन निकालने वाले टुकड़े आ गए। इट इज 0.85 x प्लस y प्लस 6y। इलेक्ट्रॉन खाने वाले टुकड़े कितने हैं? 50। 50। तो खत्म। वी नो वी हैव वन इक्वेशन, 0.85 x प्लस y, राइट, प्लस 6y, है ना? ये इलेक्ट्रॉन निकालने वाले, है ना? तो हम कह रहे हैं जी मिली इक्विवेलेंट्स, हमने क्या कहा? मिली इक्विवेलेंट्स इलेक्ट्रॉन निकालने वाले इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट्स इलेक्ट्रॉन खाने वाले। ये तो बोल रहे हैं।
इलेक्ट्रॉन निकालने वाले मिली करंट दूसरों को रिड्यूस करते हैं, खुद ऑक्सीडाइज होते हैं, और मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यही लिख लो ना, छोड़ो, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, नहीं रिड्यूसिंग एजेंट है ना, खुद ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, और ये इलेक्ट्रॉन खा रहे हैं तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, खुद रिड्यूस हो रहे हैं, दूसरों को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं। that is what is happening. तो 0.85 x plus y plus 6y, can I say it is equal to 50? ये फीलिंग आ रही है? आगे चलते हैं। फिर क्या हुआ? अब Fe3+ किससे रिएक्ट कर रहा है? Fe3+ किससे रिएक्ट कर रहा था? बताओ। K4FeCN6 K4FeCN6. Why the rubber is not coming out? It is reacting with K4FeCN6. ये बात समझ आ रही है? ये बात समझ आ रही है? राइट। अब जो ये रिएक्ट कर रहे हैं K4FeCN6 से कितने मिलीमोल्स हैं? कैन आई से 8.8 मिलीमोल्स? तो क्लियर ही है? इज इट क्लियर? और यहाँ Cr+6 कैसे किया था? एग्जाम में बताया था कि Cr+6 कैसे किया था? This went in form of CrO4 2- which reacted with Ba2+ to give you BaCrO4. इसमें कोई वैल्यू नहीं दी अभी तक, इसकी कोई इसका यूज नहीं है अभी तक। अब ये 8.8 मिलीमोल्स है, Fe3+ के कितने मिलीमोल्स हैं? कैन यू टेल? I think you can simply conserve atoms. भाड़ में इक्वेशन, अब तो इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है। How many millimoles of Fe3+? ये सारा Fe3+ से कनेक्ट हुआ है, और ये Fe3+ इंटैक्ट रहेगा ना? It will be 0.85 x plus y plus 0.1 x. ये फीलिंग आ रही है? कितने मिलीमोल्स हैं? ये बात समझ आ रही है? Why am I not talking in milliequivalents? Because not all Fe3+ is behaving as some agent. Some Fe3+ is simply behaving as ion. So I am refraining from talking about milliequivalents here. ये बात समझ आ रही है? फीलिंग आ रही है? सब कुछ यूज हो गया इस क्वेश्चन में। अब आगे चलते हैं जी। अब यहां पर इन दोनों का रिएक्शन कैसे हो रहा है? 1:1 के रेशियो में हो रहा है। Because what was the reaction? It was K2Fe plus 3 into FeCN6 plus 2। ये बात समझ आ रही है? plus 2K+. It's a balanced reaction. Are you able to feel this? तो अगर इसके 8.8 मिलीमोल्स हैं तो कैन वी से ये 1:1 के रेशियो में यूज हो रहे हैं? कैन वी से मिलीमोल्स ऑफ Fe3+ is equal to millimoles of K4FeCN6 used? ये फीलिंग आ रही है? What does that imply? This implies 0.85 plus 0.85x plus y plus 0.1x is equal to what? 8.8. ये कहानी आ गई। Is it clear? तो 0.95x plus y equal to 8.8. ये बात समझ आ रही है? क्वेश्चन समझ आ रहा है ना? ये क्लियर है कहानी? इसके मैंने सारे ऑप्शंस में लिखे शायद। ये 22-23 नहीं है। कट दिस आउट कि बाकी ऑप्शंस भी हैं। लेट मी राइट द अदर पार्ट्स। लीव वन पेज टू राइट दिस क्वेश्चन। So just forget this 22-23. Right? So this is not part of the sheet. We wrote this as 51. तो इसको क्वेश्चन 51 कर लो।
51 to 54, 50 to 53, right? Redox की sheet में शायद questions कम है. Wait a minute, how many questions do we have in Redox sheet? The number of questions in Redox sheet is 45. 45 put करें हमने ना. इसको 46 बोल लो. So let's call it as 46. So question number 46. Question number 47. Question number 48. Total percent of iron present in the ore. ये पूछा एक तो है ना, ये तो निकल जाएगा, अभी निकल जाएगा. How many millimoles of Prussian blue is formed? ये पूछा देखो, यहाँ से चेक हो गया है. How many millimoles of Prussian blue is formed? How many millimoles of Prussian blue would be formed? ये कितने millimoles बनेंगे बताओ, कितने बनेंगे? 8.80 तो बनेंगे. Is it clear? Yes, sir. Right? See 8.8. This is the answer is 8.8. ये क्लियर है, 8.8 बनेंगे. तो ऑप्शन देख के थोड़ी शांति पड़ती है कि हाँ कुछ तो मैच करा. अब तो सॉल्व करना है दोनों को. We just have to solve them. Just to solve them, so what do we get? We get y is equal to 8.8 minus 0.95x. Right? No, जी. So this implies 0.85 x plus 7 times of 8.8 minus x को ना पुट कर दें. हम x को ना पुट, हमें निकालनी किसकी वैल्यू है? वैल्यू क्या निकालनी थी हमें? परसेंटेज ऑफ Fe2O4. चलो x की वैल्यू निकालनी है ना, चलो x निकाल लेते हैं. 7 टाइम्स ऑफ 8.8 minus 0.95x equal to 50. This is what you have to solve. Right? So it's a वाहियात क्वेश्चन. ये 7 हो गया ना, 7 into 5 is 35. तो ये क्या करते हैं, नेगेटिव हो गया. तो 7 into 8 is how much? 8 7s are 56. फिर x2 आ रहा है. x2 आ रहा है. हाँ हाँ. तो x is coming out to be 2. तो सॉल्व कर लेना. तो x is coming out to be 2. Right? So if x is coming out to be 2, we know what is the value of y. Y is 8.8 minus 0.95 into 2. तो कितनी वैल्यू आ गई? 1.9. माइनस करना 8.8 में, सब्ट्रैक्शन अगेन मेरी वीक है. 9 6.9 हो गया ना. तो 6.9 मिलीमोल्स इसके आ गए और इसके मिलीमोल्स 2 आ गए. Is it clear? Now what do we need to find? We need to find percentage of question 46. Percentage of Fe 0.95 and O10. तो ये ले लेते हैं जी. तो क्वेश्चन 46 का आंसर है परसेंटेज ऑफ Fe 0.95 into और O1 इज इसका जो मास है, इसके मोल्स कितने आए? It is equal to moles of Fe 0.95O into molecular mass of Fe 0.95O by how much was the mass of the ore? 2 grams into 100. ये क्लियर है बात सबको? क्वेश्चन क्लियर है? इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालना पड़ेगा. वो तो निकल जाएगा ना मॉलिक्यूलर वेट. तो तुम कैसे निकालते हो मॉलिक्यूलर वेट? गो टू द बेसिक्स. Na2SO4. How do you go? You said 2 particles of Na, so 2 into 23 plus 1 sulfur plus 4 into 16. Similarly, if we have Fe 0.95O, mass निकल जाएगा 0.95 into 56 plus what? 16. ऐसे तो होना चाहिए. ये आंसर क्या आ रहा है? देखो जरा 56 और 16. कोई कैलकुलेटर यूज करो. ओके, कौन है जिंदगी में मैं भी यूज कर लूं. कितनी वैल्यू आ रही है देखो जरा.
0.95 multiplied by 56, 53.2 plus 16. What is the value? 67.69.2 आ गई वैल्यू. Is it clear? तो 69.2 की बात कर लेते हैं. तो ये कितना आ गया जी? तो मोल्स कितने हैं? 2 into 69.2 by 2 into 100. That's how it is. ओह, ये तो कट गया 2 2. Very nice. अपॉन 1000 भी होगा, मिलीमोल्स थे वो। और मिलीमोल्स थे. Yes. So 2 by 1000. ये कट गया 2 by 1000. So ये कट जाएंगे 2 0. तो this will be 6.92%. 6.92% आ रही है वैल्यू. Yes, we have this. आंसर मैच कर जाए तो जो चमकती है ना एकदम. Is it clear what we have done in this question? We have spent half an hour in this question. We've done a lot of things. We have kind of revised the whole stoichiometry and the whole redox with this one question. That's what we have done. That is the beauty of this question. This question will never come in exam. And if this will come in exam, तो बिल्कुल खुशी जाना. और बाहर आके बोलते ना आंसर A है, B है, C है, D है, खत्म. छोड़ो. Such kind of questions will never come. आगे चलते हैं. ये तो हम पहले कर लेते. What is the percentage of total iron present in the ore? Percentage of total iron present की बात करें, है ना? तो percentage of 47th question. Percentage of total iron present बोला है. Total iron. भैया +2 वाला. हाँ +2 वाला. अच्छा +2 वाला बोला है. तो it will be moles of Fe+2 into weight, molecular weight of Fe+2. ये होगा ना? ये बात समझ आ रही है? Is it clear? इसमें कंफ्यूजन तो नहीं है? सोच लो इत्मीनान से. है ना? और टोटल आयरन, टोटल वेट कितना है? What percent of total iron present in? अच्छा, what percent of total iron present is the ore is in +2 state. अच्छा, आयरन में निकालना है फिर तो ये तो मोल्स में कर लो काम, मोलिकुलरिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी. क्वेश्चन क्लियर है क्या है? मैं डिवाइड बाय 2 कर रहा था. I was about to divide this by 2 and then multiply it by 100. This would have been given the mass percentage of iron. But this is not what the question asks. What does the question ask? What is the total iron? What percent of total iron present in the ore is in +2 state? तो total iron कौन सा है? Percent of total iron in +2 state की बात करें तो हमारे पास +3 स्टेट वाला आयरन भी है और +2 वाला भी है. +3 स्टेट वाला आयरन कितना है? How many millimoles? How many millimoles? 0.1x. 0.1x millimoles. And how many millimoles of +2? 0.85x plus y. ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हो गया. परसेंटेज ऑफ +2 वाला निकालना है. तो परसेंट ऑफ +2 क्या होगा? 0.85x plus y millimoles अपॉन टोटल मिलीमोल्स. तुम मास से भी करोगे तो भी सेम आएगा, फर्क नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि दोनों का चाहे +2 स्टेट हो चाहे +3 स्टेट हो, मास तो सेम ही है. into 100. So 0.85x plus y upon 0.95x plus y into 100. तो 90% करीब आ रही होगी वैल्यू. 97% ये आंसर आना चाहिए लॉजिकली. देख लेना क्या आ रहा है. कैलकुलेटर देख लेना, कैलकुलेटर से 97% आना चाहिए आंसर. इज इट क्लियर? कोई बहुत कम फर्क है ना डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में. ये अप्रोक्सीमेटली 90% होगा. बन चल रही है तो ये मार्क कर रहा हूं. क्वेश्चन क्लियर है? क्या था इस क्वेश्चन में? इज इट क्लियर व्हाट इट इज इन दिस क्वेश्चन? यस मयूर हैज अ डाउट. सर जो हमने पहले x और y की वैल्यू निकाली है वो मिली इक्विवेलेंट नहीं है? मिलीमोल. x को क्या अज्यूम करा था मैंने?
x नॉट बोल दिया मैंने, अच्छा मिलीमोल, फिर n फैक्टर्स मल्टीप्लाई, फिर मिलीमोल्स निकाले मैंने, फिर मिलीमोल से n फैक्टर्स मल्टीप्लाई करके मिलीक्यूलेंट निकाले। x तो मिलीमोल्स है ना, मैं ठीक है। सॉल्व कर दे तो x ही लिखो, इसको x नॉट मत लिखो। इज इट क्लियर? और ये इनको x डैश कर दो, इसको x डैश कर दो, x डैश, इसका इन फैक्टर इज x डैश, इसका इन फैक्टर इज x डैश, ऐसे कर दो। अब क्वेश्चन पढ़ोगे तो शायद दिख जाएगा, ऐसे भी नहीं होगी हमने एक्सपेरिमेंट, है ना। और उसमें कुछ लोग गलतियां करते हैं, एक इक्वेशन यहां से बना देते हैं जो मैंने बनाई मिलीक्यूलेंट से, और दूसरी इक्वेशन समझ नहीं आती क्या करना है जो ये बनाई थी। फर्स्ट इक्वेशन नंबर 2, ये क्लियर है? दे डोंट मेक दिस इक्वेशन, व्हाट दे से इज कि जी बता तो दिया, और कितना है 2 ग्राम, और 2 ग्राम दे रखा है, और में क्या बता रखा है FeCrO4 और क्या है Fe0.95O, तो वी कैन से 2 grams is equal to what, mass of FeCr2O4 plus mass of what Fe0.95O1। तो ये क्या हो जाएगा, मोल्स कितने इसके, कितने लिए थे मैंने, y लिए थे शायद, y into molecular weight of FeCrO4 Cr2O4। लॉजिक समझ आ रहा है? इज इट क्लियर? प्लस इसके मोल्स कितने थे x, इसका मास कितना था 69.2, FeCr2O4 का मास कितना होगा चेक करना पड़ेगा, जो भी मास है। क्रोमियम का मास क्या है मुझे याद नहीं है, आई डोंट नो, चेक कर लेना क्या है, व्हाटएवर इज द मास ऑफ क्रोमियम। Fe2Cr4 का मास देख लें, m नॉट मास ऑफ क्रोमियम देख लेते हैं, एटॉमिक मास ऑफ क्रोमियम। वैसे तो जो स्कटिव क्रमन फीकोनी को होता है ना 56 है, वो 54 टाइप होना चाहिए, 51 है देखो ये। एटॉमिक मास ऑफ क्रोमियम इज 52 दे रखा है, तो ये हो जाएगा ना 52 प्लस 64 प्लस 56, 6 4 10 14, एक ऊपर है ना, और कितना हो गया 5 3 15 और 16 224, तो अगर 224y प्लस 69.2x इक्वल टू 2, ये मत करना, ये बात समझ आ रही है? ये तब करना होता जब कुछ नहीं दिया होता। यू कांट से देयर माइट बी सम मोर इम्प्योरिटी, it does not say that this has only Fe2O, Fe0.95O impurity. It might have some other impurity. This is possible. ये फीलिंग आ रही है? Is it clear what you've done in this question? Is it clear? म्यूट होते थे सब म्यूट हो गए, Yes, sir. right? So it's a good question. It makes us revise everything. कि रिएक्ट कर रहे हैं, रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, कुछ साथ में सॉलिड का क्वेश्चन भी आ गया, वॉइड भी चेक कर लिया इसके अंदर, है ना। फिर वो Fe2+ जो है वो ये वाला Fe2+ भी रिडॉक्स में पार्ट ले रहा है, तो है ना, और फिर इसका Fe3+ जो आगे वाले वो क्वालिटेटिव वाले रिएक्शन में पार्ट ले रहा है, फिर क्वालिटेटिव वाले में जो फेरोसाइन डाला वो भी एक्सेस में डाला, तो जिंदगी में पूरा मजाक कर दिया इनका। बस चलता तो यहाँ बेरियम में भी कुछ खेल लेते, ये रह गया बस। इज इट क्लियर? राइट। तो कोई तुमसे पंगे ले तो तुम्हें पता क्या करना है, उल्टे पंगे लेने के लिए क्या क्वेश्चन देना है तुम्हें तो पता है क्या करना है जी, कि जी हमसे तो ना हो रहा, हम तो ना जा रहे एडवांस पेपर देने, और तू तो जा रहा है ना, चलिए क्वेश्चन करके दिखा, ठीक है। और नहीं हुआ तो जी बस खत्म, इट इज फाइन, राइट। लेट्स टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन। When ammonium vanadate, बस जी आधे लोग यहाँ छोड़ के जाने वाले हैं, बोलिए जी अमोनियम वैनेडेट, वैनेडियम की बात हो रही है, स्कटिव तीसरा एलिमेंट है D3H2, पर इससे कुछ समझ ना आएगा। इज हीटेड विद ऑक्सैलिक एसिड, जी हमें भी इसमें डाल दो, सब्सटेंस Z और Z इज फॉर्म्ड, ठीक है जी, ओके जी। अमोनियम वैनेडेट होगा कुछ, अ सैंपल ऑफ Z वाज ट्रीटेड विद KMnO4, अच्छा जी, तो Z को चेंज करा जी KMnO4 के साथ, है ना।
आगे चलते हैं जी। इन हॉट एसिडिक सोल्यूशन, हाँ जी Mn2+ बनेगा, इतना हमें आता है। सो वी हैव अमोनियम वेनेडेट, हमें ना पता ये कैसे होगा। रिएक्ट्स विद व्हाट, ऑक्सैलिक एसिड, हाँ जी चलो कुछ तो आता है। फॉर्म्स सम कंपाउंड Z और Z which reacts with what, KMnO4 in acidic medium। ये बेस्ट है, आउटलाइन बनानी ये कारक है। अच्छा जी, द रिजल्टिंग सॉल्यूशन, यहां पे क्या हुआ होगा, KMnO4 +7 से रिड्यूस हो गया होगा to +2, और यहां क्या हुआ होगा हमें नहीं पता। ये पक्का है कुछ ना कुछ ऑक्सीडेशन हुई होगी, क्लियर है, कुछ ना कुछ ऑक्सीडेशन हुई होगी, राइट। आगे चलते हैं जी, है ना। यहां पे कार्बन +3 स्टेट में, कार्बन +3 स्टेट में तो ऑक्सैलिक में, तो ये ऑक्सीडाइज होता है, ये +4 में ऑक्सीडाइज होता है, याद है, उड़ गया होगा यहाँ पर। तो यहाँ पे Z पे कुछ ना कुछ रिड्यूस हुआ होगा, वेनेडियम रिड्यूस हुआ होगा, ये बात समझ आ रही है। दिस मस्ट बी रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ वेनेडियम। कोई कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है और फिर उसको दोबारा क्या करा, ऑक्सीडाइज, इट मस्ट बी ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ वेनेडियम। फिर क्या बोले, द रिजल्टिंग सॉल्यूशन वाज रिड्यूस्ड विद SO2। पागल हो गए, पहले रिड्यूस करा, फिर ऑक्सीडाइज करा, फिर दोबारा रिड्यूस कर रहे हैं। वेली आत्माएं, उन्हें केमिस्ट्री वाले नौकरी लगती नहीं है, वेले बैठे हुए, टीवी है नहीं इनके पास, क्या करें, पहले जा रहे हैं। इसमें क्या डाला, SO2, राइट। तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन वाज रिड्यूस्ड विद SO2, तो अगेन वी हैव रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ वेनेडियम। ऐसा क्वेश्चन हमने क्लास में करा था, पता नहीं जी, वो कॉपी तो रख दी, भेज दी हमने, राइट। एंड SO2 वाज बॉइल्ड ऑफ, एक्सेस SO2 वाज बॉइल्ड ऑफ, तो रिड्यूस करा, तो ये +4 से क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडाइज हो रहा होगा। कहां ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्या तुक्का मारोगे बताओ, सल्फर कॉन्सेंट्रेट में जाएगा +6, तो SO4 2- लिखो या SO3 लिखो, दोनों में क्या होगा, +6, मोस्ट लाइकली SO4 2- होना चाहिए, ये तुक्का मारोगे। एंड एक्सेस SO2 वाज बॉइल्ड ऑफ, तो जो भी एक्सेस था वो बॉइल ऑफ कर दिया, खत्म बात, है ना। एंड द लिक्विड वाज टाइट्रेटेड अगेन, ये तो पागल हो गए जिंदगी में ना। अब दोबारा क्या डाल रहे हैं, KMnO4 जी, फ्री का माल है तो जलाओ। लिक्विड वाज अगेन टाइट्रेटेड विद KMnO4, तो अगेन KMnO4 में टाइट्रेट करा, तो अगेन Mn+2 में आ गया होगा, Mn रिड्यूस हुआ है, तो कैन वी से अगेन विल हैव ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ वेनेडियम। ये फीलिंग आ रही है, कैसे जा रहे हैं, ये जिंदगी में काम नहीं है। द रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ KMnO4 यूज्ड इन 2 टाइट्रेशंस इज 5:1। तो अगर 5:1 का रेशियो है, तो इसका मतलब यहां पर 5 गुना वॉल्यूम यूज हुआ है KMnO4 का, है ना, और यहाँ पर 5 गुना मोल्स हैं कंपेयर टू यहाँ वाले मोल्स। ये फीलिंग आ रही है कि जितना अमाउंट यहाँ KMnO4 का यूज हुआ है, उसका 5 गुना यहाँ पे यूज हुआ है, ये मतलब है, यूज करेंगे कहीं ना कहीं यूज हो रहा होगा। What is the oxidation state of vanadium in substance Z और Z? इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। अच्छा, given that KMnO4 oxidizes all oxidation state of vanadium to vanadium +5। अच्छा, तो KMnO4 ऑक्सीडाइज करके +5 लेके जाता है, तो यानी यहाँ पे वेनेडियम +5 है, राइट। और वेनेडियम कहां पर, यहां पर भी है +5, राइट। एंड SO2 reduces vanadium +5 to +4। अच्छा जी, तो यहाँ वेनेडियम +4 है, ये बता रखा है। इज इट क्लियर? हमें ये नहीं पता यहाँ पे वेनेडियम की स्टेट क्या है, कुछ ही मान लेते हैं वेनेडियम की स्टेट, कुछ ही मान लेते हैं X। We don't know what is the state because we do not know what is the formula of vanadate. It's a d block element. It has multiple states. हमने मान लिया यहाँ पे वेनेडियम क्या मान लिया, +X। Is it clear? क्वेश्चन को तमीज से कर लिख लो, समझ लो, तो काम खत्म हो जाता है। तो व्हाट डू यू थिंक इज द n फैक्टर ऑफ वेनेडियम +X, राइट। या इसको मान लो +A,
What do you think is the n factor of vanadium plus A? 5 minus A. 5 माइनस ए, बिल्कुल प्लस ए से प्लस साइड जा रहा है और ऑक्सीडाइज हो रहा है, पक्की बात है ए मस्ट बी लेस देन 5। ये फीलिंग आ रही है कि दिस ए मस्ट बी लेस देन 5 बिकॉज ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो इसका एन फैक्टर क्या होगा? 5 माइनस ए। इज इट क्लियर? क्लियर है? क्लियर है बात सबको? यस सर। हाँ भैया। तो हम कह रहे हैं जी इसके कुछ भी मोल्स मान लो, कुछ भी मोल्स मान लो, मोल्स की वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, मान लो, चलो कुछ भी ले लो जी, पी मोल्स, पी मोल्स थे वेनेडियम के। तो अगर पी मोल्स थे वेनेडियम के, इसके अंदर क्या मान लिया, लेट पी मोल्स ऑफ वेनेडियम प्लस ए माइट बी देयर इन Z और Z। मिली इक्विवेलेंट्स आ गए हमारे पास। तो दिस इंप्लाइज milli equivalents of vanadium plus A should be equal to milli equivalents of KMnO4, which implies कितने moles में P into 5 minus A should be equal to milli equivalents of KMnO4, है ना? हमने मान लिया जी उसका वॉल्यूम कितना यूज हुआ, कुछ ही मान लो V1 वॉल्यूम यूज हुआ, उसी कुछ मोलैरिटी थी, कुछ थी M1 ले लो या M0 ले लो, M0 is its molarity और V1 वॉल्यूम यूज हुआ। तो how many milli currents यूज हुए? 5 into M0 into V1। क्लियर है? आगे चलते हैं। सेकंड, ऑल्सो मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ, यहां दोबारा एक इक्वेशन और है ना, एक इक्वेशन के साथ में क्या है कि इसका वॉल्यूम 1/5 यूज हुआ, तो इसकी मोलैरिटी तो वही है M0 और वॉल्यूम कितना यूज हुआ, V1/5। फीलिंग आ रही है? We can say, और इसका इन फैक्टर क्या है? What do you think is the in factor of this? 1. And how many millimoles of this will be there? P millimoles by conservation of atoms. भाई वो तो वेनेडियम के P millimoles होते हैं, यहाँ पे P millimoles, सब जगह P millimoles है। तो दोबारा milli equivalents of vanadium plus 4 will be equal to milli equivalents again of MnO4 minus. So P into 1 is equal to what? 5 into M0 into what? V1/5. That's it. I think we'll just divide and we'll get the answer. This implies 5 minus A is equal to 1 upon M0 है ना ये 1/5, which is equal to 5. A0. That implies A is equal to 0. है ना? Implies ammonium vanadate को किस में रिएक्ट कराया था? किससे रिएक्ट कराया था? ऑक्सैलिक एसिड के साथ। ऑक्सैलिक एसिड के साथ रिएक्ट कराए थे, तो ऑक्सैलिक एसिड से रिएक्ट कराने के बाद ये किस में चला गया? वेनेडियम में। वेनेडियम सॉल्ट में गया होगा, राइट? और ऑक्सैलिक एसिड किस में गया होगा? CO2. CO2 गैस। ये कौन चल रही है? Is it clear? Right. So again, this question is relatively easy compared to the previous question. Previous question तो मतलब बिल्कुल ही मतलब it was like accumulation of 10 questions. रावण था पिछला क्वेश्चन, है ना? ये आधा रावण मान लो, खुद ही पेल दो, right? Not that difficult. Let's talk about the next question. ये जबरदस्ती बस लंबा खींच रखा है क्वेश्चन को, और क्या करोगे? जबरदस्ती लंबा खींच रखा है। Just read the question and make an outline. That's what I want you to do. Read the question, make the outline. पढ़ो एक बारी और आउटलाइन बनाओ जल्दी से।
सुधीर भैया को बुलाना। चल रही कहानी, ये क्लियर है क्यों बोला Mn रिड्यूस हो रहा है? Mn रिड्यूस हो रहा है और कार्बन जो है +3 से कहां जा रहा है? +4 जा रहा है। उसको राइट, तो ये रिड्यूस हो रहा है, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है जी। तो जनरली आई जस्ट आस्क्ड आवर टीम टू गिव मी सम गुड क्वेश्चंस व्हिच वी कैन डिस्कस। तो होता है बहुत सारी चीजों का सॉल्यूशन ही नहीं होते हैं, तो मैं सॉल्व कर रहा होता हूं ऑन द फ्लाई। +3 से +4 जा रहा है, रिड्यूस अभी ये CO2+ रहेगा, आगे चलते हैं। फिर रिजल्टेंट सॉल्यूशन इज न्यूट्रलाइज्ड विद व्हाट? Na2CO3। अब रिजल्टेंट सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज करा किसके साथ? Na2CO3 के साथ, एसिडिफाइड विद डाइल्यूट एसिड। अच्छा जी, एसिडिफाइड विद डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट एसिटिक एसिड, ठीक है, एंड ट्रीटेड विद व्हाट? एक्सेस KI। अब टू बी ऑनेस्ट, इसका रिएक्शन विद न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन जो है बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है। अब ये तो ऐसे हो सकते हो कि ये क्या एसिडिक H2CO3 और ये क्या बेसिक, तो दोनों मिलकर बाइकार्बोनेट बना रहे होंगे। ये दोनों मिलकर बाइकार्बोनेट बना रहे होंगे, ये बात समझ आ रही है? तो ये CO2 को न्यूट्रलाइज करा होगा बेसिकली, ये बना होगा, और CO2 बना नहीं होगा। CO2 तो गैसियस है, या क्या बनेगा? H2CO3 एक्वस। तो इन दोनों का रिएक्शन हो रहा होगा। ये कहानी चल रही है। और डाइल्यूट एसिड क्यों डाला? वो डाइल्यूट एसिड तो अजीब ही लग रहा है, वो डाइल्यूट एसिड जिससे ना ऐड कर जाए। तो फिर थॉट आया कि इन दोनों का रिएक्शन, वी हैव डन दिस आयोडीमेट्री, याद करो। अगेन क्वालिटेटिव विल हेल्प अस। U2+ का रिएक्शन with I- gives you what? Cu2I2 plus iodine, and this was white PPT. याद आ रहा है? And this I2 was what? Red brown solution. याद आ रहा है red brown solution? Is it clear? Which reacts with excess I- to become intense brown. लॉजिक समझ आ रहा है? रिडॉक्स के केस में तुम तो I2 लो, I- लो, फर्क नहीं पड़ेगा ना, एक I- जबरदस्ती ऐड कर दिया है, इस साइड भी I- ऐड कर दो, इस साइड भी I- का ऐड कर दो, does not matter, it will become I3-। You can solve the question with I2 also, does not matter। अब यहाँ पे हुआ क्या है? कॉपर +2 कहाँ जा रहा है? +1 में, और I- कहाँ जा रहा है? 0 में। That is what is happening। फिर क्या बोला है जी? फिर क्या बोला है? उसके बाद क्या हुआ है? लिबरेटेड आयोडीन इज रिएक्ट विद थायोसल्फेट, दिख गया देखो नीचे, ये स्टैंडर्ड रिएक्शन, लिबरेटेड आयोडीन, राइट। तो ये अब एग्जाम में खुद ही बता दे कि I3- की बात मत करो, थिंक इन टर्म्स ऑफ व्हाट? I2, और ऐसे करो I2 गैस निकल रही है। लिबरेटेड आयोडीन रिएक्ट्स विद व्हाट? थायोसल्फेट टू गिव टेट्राथायोनेट। ये वापस I- में आ गया होगा, और ये क्या बन गया होगा? S4O6 2-। Is it clear? Because the medium is acidic, and if nothing is, then the medium is acidic। तो घटिया क्वेश्चन हो गया ये, कुछ है ही नहीं। और वैल्यूज बता दी हैं किसकी? 11.3 ml of 0.05 molar Na2H2O3। So we have 11.3 ml into 0.05 molar into 1 कर दूं, ये मिलीक्रेंट्स आ गए। Is it clear? तो यही मिलीक्रेंट्स किसके हैं? कहने से आयोडीन के हैं। और यही जो मिलीक्रेंट्स हैं ये यहाँ पे प्रोड्यूस हुए हैं, और एंड आई कैन ट्रैवर्स, बिकॉज यहाँ भी I- से I2 में जा रहे हैं, और यहाँ भी I2 से I- में जा रहे हैं। याद करो वो क्वेश्चन, जहां पे यहां से यहां और यहां से यहां, अगर यहां पर था कुछ Br- या रिड्यूस हुआ था, कुछ ऐसी कुछ कहानी थी, हमने ऐसे कुछ केसेस करे थे। कुछ ऐसा केस किया था कि ब्रोमीन जो है वो +5 से 0 जा रहा था,
और फिर नेक्स्ट रिएक्शन में 0 से BrO माइनस जा रहा है, जहां पे प्लस 1 है, ये है BrO3 माइनस। तो अगर ऐसा केस होगा तो यू कान ट्रैवर्स इन मिलीमोल्स, मिली इक्विवेलेंट्स, बिकॉज यहां बिहेवियर डिफरेंट है। यहां 0 से कहां जा रहा है, +1, तो यहां n फैक्टर है 2, और यहां 0 से कहां जा रहा है, +5। ये फीलिंग आ रही है? तो यहां n फैक्टर क्या है, 10, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है दोनों। तो यहां पर अगर मिलीकरेंट आते हैं 10, तो यू कांट से 10 मिलीकरेंट है, तो मिलीमोल्स में ट्रैवर्स करना पड़ेगा, इसको मिलीमोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और फिर मिलीमोल की बात करनी पड़ेगी। रिवाइज दैट क्वेश्चन, याद आ रहा है? रिवाइज दैट क्वेश्चन। यहां पर आई कैन से जितने मिलीकरेंट जहां पर है वही मिलीकरेंट यहां पर, बिकॉज नेचर सेम है। यहां भी I- I2 आ रहा है और यहां भी I2 से I- जा रहा है, तो जितने मिलीकरेंट्स ये हैं ये मिलीकरेंट्स हैं, और जितने मिलीकरेंट्स इसके हैं उतने मिलीकरेंट्स आई कैन से इसके हैं, राइट? तो हमारे पास Cu2+ के मिलीकरेंट्स आ गए। इज इट क्लियर? और कहीं कोई वैल्यू दे रखी है? दे रखी है, टाइट्रेशन कंज्यूम्स 0.02 मोलर KMnO4, राइट, 22.6 ml। तो 0.02 मोलर इंटू 22.6 ml ये दे रखा है। इज इट क्लियर? इफ द मोलर रेशियो ऑफ दिस टू दिस इज 1:x, कि इसके अगर कितने मोल्स हैं, जो कुछ ही मान लो, इसके कुछ x मोल्स मान लो या a मोल्स मान लो, है ना, तो ये वाली वैल्यू ax हो जाएगी, ये ax मिलीमोल्स हो जाएंगे। ये बात समझ आ रही है? ax लिख दिया तो x की वैल्यू कुछ और कर लेंगे, चलो ये a मिलीमोल्स हैं अगर, तो ये ax मिलीमोल्स हैं। ये बात समझ आ रही है? इज इट क्लियर? अच्छा, पहले रिएक्शन में कौन दोनों रिएक्ट करे, C2O4 and MnO4 माइनस, तो कहना ऐसे मिलीकरेंट ऑफ दिस इक्वल टू मिलीकरेंट ऑफ दिस। सो वी नो मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ C2O4 2 minus is equal to milli equivalents of KMnO4। the reaction आ गया, this implies AX into what is the n factor of C2O4? 2। ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, इसका n factor is 2, तो AX into 2 is equal to what? मिली इक्विवेलेंट्स कितने इसके, 22.6, और 0.02 into 22.6 into 5, ये की क्वेश्चन आ गई। और दूसरी कहानी क्या है, कैन वी से मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ Cu2+ is equal to मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ आयोडाइड। ये इसके मिली इक्विवेलेंट्स आ गए। Cu2+ के मिलीमोल्स कितने हैं, कितने मिलीमोल्स, A मिलीमोल्स है ना? इज इट क्लियर? हाँ we know that milli equivalents of Cu2+, it is equal to milli equivalents of I minus, which is equal to milli equivalents of I2, which is equal to milli equivalents of what? और I minus की बात मत करो as milli equivalents, because I minus का behavior 2 तरह का है, पर milli equivalents of I2 तो कर ही सकते हो, which is equal to milli equivalents of thiosulfate, right? ये क्या कर दिया मैंने, अच्छा नीचे ऊपर आ गया ना ये क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर, हाँ भैया। राइट? तो redox हो गया ये खत्म। तो that implies what do we get? This implies we get what is the milli equivalents? A into इसका n factor क्या है? 1 What is the n factor of Cu2+? 1 वैल्यू है 1 है, the value is 1 into what is the, इसके मिली इक्विवेलेंट्स कितने आ रहे थे, 0.05 into 11.3, because n factor again इसका 1 था। Is it clear? तो क्वेश्चन की सॉल्विंग तो आसान ही है, कुछ है नहीं इसमें। This implies we can straightforward divide. This implies 2x is equal to what? 0.02 into 22.6 into 5 upon 0.05 into 11.3। ये कट गया, ये 2 कट गया, सभी कुछ कट रहा है, ये इससे कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा, तो x is equal to 2 आ गया। Is it clear? क्वेश्चन क्लियर है क्या है?
सर एक डाउट है हाँ बोलो, सर, जैसे मुझे प्रॉब्लम रिएक्शन लिखने में हो रही हो तो उसको कैसे सॉल्व करें, मतलब कहाँ प्रॉब्लम होती है? इत्मीनान से पढ़ो, Yes. कहाँ प्रॉब्लम है बताओ। जैसे ये रिएक्शन लिखते तो मैं अभी तक खुद से करने की कोशिश कर रहा था, मुझसे पूरा रिएक्शन नहीं लिखा जा रहा था। हाँ तो तुम लेमैन की तरह नहीं कर रहे ना, इसका मतलब यू आर ट्राइंग टू सॉल्व इट लाइक अ क्वेश्चन ऑफ केमिस्ट्री एंड यू आर ट्राइंग टू सॉल्व इट लाइक डर लग रहा है जी, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। मैं तो कह रहा हूं होगा ही नहीं, मैं तो कह रहा हूं ऐसे करना है कि नहीं होगा। अब लेमैन की तरह सोचना है कि सिचुएशन क्या, स्टोरी लिखनी है, व्हाट इज द स्टोरी, बिकॉज क्वेश्चन होना ही नहीं है। तो लेमैन की तरह सोचोगे तो आराम से पढ़ोगे। तो ये सोचना है कि दूसरी के बच्चे को पढ़ाना है कि इस अंग्रेजी का मतलब क्या है, ये पढ़ाना है। तो कैसे पढ़ाओगे जी, कैसे पढ़ाओगे? अ सॉल्यूशन ऑफ 0.2 ग्राम कंपाउंड, 0.2 ग्राम कंपाउंड है, अच्छा कंपाउंड है तो परसेंटेज की बात कर रही है एग्जामिनर ने। कंटेनिंग CO2 प्लस C2O4 माइनस, ये लिखा दिया हमने। इज टाइट्रेटेड विद KMnO4, मैंने MnO4 ऐसे दिया। इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस, मैंने H प्लस लिख दिया, H2O4 लिख दिया। जैसे जो मैं लिखते जा रहा हूं, मैं सोच नहीं रहा कि मुझे आंसर आता है, मैं तो बस लिख रहा हूं। आई एम जस्ट ट्राइंग टू decipher what exactly is happening in this question. Consumes 22.6 ml of the oxidant. ऑक्सीडेंट समझ नहीं आया, ऑक्सीडेंट क्या होता है जी? जो दूसरों को ऑक्सीडाइज कर रहा होगा, ऑक्सीडेंट दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सर तो खुद क्या हो रहा होगा? रिड्यूस, यानी पक्की बात, इसी की बात कर रहे हैं। और बाय एक्सपीरियंस, बाय फीलिंग की ये तो 0.2 ग्राम है CO2 प्लस, और ये तो 0.2 ग्राम है। वॉल्यूम की बात करें तो जिसकी मोलैरिटी थी उसकी तो वॉल्यूम की बात कर रहे होंगे। यस सर, नहीं पता तो आगे कि ऑक्सीडेंट है ये। फिर आगे चले, रिजल्टेंट सॉल्यूशन इज न्यूट्रलाइज्ड विद Na2CO3, समझ ही नहीं आया, पर लिख लिया तो शायद समझ आ जाए कि Na2CO, अब लिखा ये Na2CO3 से रिजल्ट आ रहा है, तो सोचना है ना पहले यहाँ पे हो क्या रहा होगा। सोच लेते हैं Mn क्या हो रहा होगा? रिड्यूस, समथिंग हैज टू ऑक्सीडाइज, तो ये CO2 बन रहा होगा। कैन दिस ऑक्सीडाइज फर्दर? नो। अब तुम डायरेक्टली ये पढ़ने लग जाओगे और सोचोगे समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा, तो समझ आएगा ही नहीं। बिकॉज़ हाउ डू वी नो? शायद मन में सोचो कि ये रिड्यूस हो रहा होगा Mn, पर समथिंग हैज टू ऑक्सीडाइज, तो ऑक्सीडेट शायद ऑक्सीडाइज हो रहा होगा। तो क्वेश्चन पढ़ते ही, राइट, इट इज इंपॉर्टेंट टू मेक अ स्ट्रक्चर इन योर हेड। जैसे यहाँ पे कंफ्यूजन हुई, कंफ्यूजन यहाँ पर होना स्टार्ट हुई होगी जिसको भी, तो अगर कंफ्यूजन होना स्टार्ट हो गई यहाँ पर, तो रुक जाओ एक बार, यहाँ देख लो यहाँ तक क्या हुआ है। फिर रिजल्टेंट सॉल्यूशन रिएक्ट्स विद व्हाट? Na2CO3, तो समझ आ गया CO2 बना होगा, तो इससे रिएक्शन हो रहा होगा, एसिड बेस रिएक्शन हो रहा होगा। और कंफ्यूजन है, इट रिएक्ट्स विद डाइल्यूट एसिटिक एसिड, समझ नहीं आ रहा, डाइल्यूट एसिटिक एसिड को डाला जी, या तो कुछ ना कोई मीडियम चाहिए होगा। फिर इट इज ट्रीटेड विद KI देखते ही फिर मुझे समझ आया, मैंने रिएक्शन लिखी जब मैंने सॉल्व किया था, मैं सॉल्व किया तो मैंने कहा अच्छा जी KI आ गया, वो ये मिल गया। KI का रिएक्शन किससे हो रहा होगा? CO2 प्लस से हो रहा होगा, आयोडीमेट्री। क्योंकि दिख गया था कि MnO4 माइनस तो रिड्यूस होगा, तो ये ऑक्सीडाइज तो और होगा नहीं, ये अनरिएक्टेड है। इस अनरिएक्टेड के लिए KI यूज कर रहे हैं। और Na2CO3 जो है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एसिड बन रहा होगा, एसिड समझ आ गया किससे बन रहा होगा? किससे? C2O4 माइनस। But I solve questions like a layman. I don't solve questions like I know chemistry already. Even if you give me a question of physics, I'll solve it like a layman. And the probability will be same as solving question of chemistry or maths. ये बता रहा हूँ मैं, शायद probability of solving a question of physics will be higher than the probability of solving a question of chemistry or maths. Because I don't remember any theory, and I don't want to remember any theory, and I don't want you to remember any theory. ये बात समझ आ रही है? वो जितनी थ्योरी करनी है वो कर चुके हैं हम। It should be a question of 10th. It should be a question of mensuration. Is that clear? यस सर, राइट। फिर KI से रिएक्शन हो गया, फिर आगे हमने आयोडीमेट्री से और समझ आ गया, हाँ जी आयोडीन का रिएक्शन होता है, राइट। सो दिस इज एज फार एज रिडॉक्स इज कंसर्न्ड। तो ये रिडॉक्स की कहानी होगी। रिडॉक्स में थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया, आखिरी 2-3 क्वेश्चन निपटा दिया हमें, राइट। दैट इज नॉट व्हाट आई एक्सपेक्टेड, बट थोड़ा हमने पढ़ गया ना। जल्दी से स्टोइचियोमेट्री के 2-3 क्वेश्चन करके खत्म करते हैं, ज्यादा क्वेश्चन हम करेंगे नहीं, राइट। सो लेट्स डू दिस क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन